who is working at some, you can say, broader level of commercialization. They might be having big factories, industries, okay, where they can replicate your idea into multiple models, okay, for the benefit of humankind, okay, or to earn from it. So what happens in this case when you sell your IP? You sign an agreement with that company. आप एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, आप उसमें लिखते हैं कि इतना परसेंटेज मेरा रहेगा रॉयल्टी का और इतना परसेंट आपका रहेगा ऑन ईच एंड एवरी प्रोडक्ट दैट यू आर क्रिएटिंग, बिकॉज हु इज द क्रिएटर? I am the creator. I am signing an agreement with you. I am selling my intellectual property to you, or I am licensing my intellectual property to you, and in that return I will get a royalty. Okay, you are producing, but I am the creator. Okay, so that's how intellectual property can be sold. It can be bought, it can be leased, it can be on rent, it can be passed under a will. Okay, you can pass it to your future generation or whatever your legal heirs, etc. Okay, now you can also assign it. You can always assign your intellectual property to someone. So this is what I discussed, because a lot of people from academic background, okay, so in academics, yes, it adds to your academic points and everything, yes, because you are in the field of research work, okay, so you might be filing a lot of copyrights, you might be filing a lot of patents, okay, you might be filing registration of industrial designs, okay. So let me classify, okay, what is patent. लोगों को confusion होता है कि patent क्या है. So patent is something, okay, that have novelty, okay, and that is having inventive step, and that is having some industrial application. Patent में technical advancement होना चाहिए. You are developing certain kind of model, instrument, okay, some equipment, some device. So we are now working on patent prosecution to grant. पेटेंट फाइल कैसे करना है, हमें पता होना चाहिए कि हम जिस टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे हैं वो पहले से मार्केट में है या नहीं है. उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, कैसे चेक करेंगे? यू कैन यूज आईपी इंडिया वेबसाइट, यू कैन डू पेटेंट सर्च. आप पेटेंट सर्च के ऑप्शन पे जाएंगे, वहां पे आप देख सकते हैं कि इस फील्ड से रिलेटेड कोई इन्वेंशन पहले से हो रखा है या नहीं हो रखा है. आप पब्लिकली अवेलेबल प्लेटफॉर्म्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि गूगल पेटेंट है एंड अदर प्लेटफॉर्म्स, जहां पे आप कुछ कीवर्ड्स या फिर कुछ सर्च स्ट्रेटजी बनाकर आप ये चेक कर सकते हैं कि कम से कम ये तो मुझे पता चले कि मैं जिस फील्ड में वर्क कर रहा हूं वो पहले से एग्जिस्टिंग है कि नहीं है. बिकॉज इट कैन हैपन, टू ह्यूमन माइंड्स कैन थिंक इन सेम डायरेक्शन. दो इंसानी दिमाग एक दिशा में सोच सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए. तो एक छोटा सा, कभी भी जब हम किसी आइडिया पे वर्क कर रहे हैं एक बार चेक करेंगे. मे बी आप जर्नल चेक कर सकते हैं, ठीक है, जिनका पब्लिक एक्सेस है, कि यार ये चीज पहले से है तो नहीं. पता चला आपने उस पर बहुत मेहनत की और कोई उसको पहले से ही बना चुका है. अगर कोई उसको पहले से बना चुका है तो फिर वो चीज नई नहीं होगी, मतलब वो नोवेल नहीं होगी. तो दिस इज ऑल अबाउट पेटेंट. तो पेटेंट क्या है? अब डिजाइन क्या होता है? किसी भी वस्तु का बाहरी आवरण. फॉर एग्जाम्पल आपने एक सोलर सेल बनाया है किसी टेक्नोलॉजी को यूज करके, तो जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है इट विल कम अंडर पेटेंट. लेकिन जो उसका बाहरी आवरण है उस सेल का, ओके, उस सेल का बाहरी आवरण जो है वो आएगा अंडर डिजाइन, ओरिएंटेशन, ओके, द एस्थेटिक अपील. दैट इज, फॉर एग्जाम्पल ये जग है, आई एम हैविंग अ जग, ओके, और ये जग का जो बाहरी आवरण है, इसके डायमेंशंस, इसके डिजाइन. सो व्हाट इज दिस? This is all about aesthetic appeal, the outer appearance of this object, okay, the orientations, okay, the dimensions, okay. But the technology of making this jug may be a new technology and that can come under patent. And once I talk about the branding, so the branding is something, a name is written on this, okay, so this is the brand and that will come under trademark. So this is how we classify. And one more thing, for example, consider this as some, you can say, this is a booklet of patents, okay. So this is all what. अब कोई कहे मुझसे कि यार मैं ना इसका पेटेंट ले लेता हूँ, सबसे बड़ा कंफ्यूजन है. मैं बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में गया, इवन वहाँ एकेडमिक्स में जो फैकल्टीज थे उनको भी कंफ्यूजन था. तो इसका मैं पेटेंट फाइल नहीं करूंगा इस बुकलेट का. दिस इज अ बुकलेट, ओके, दिस इज अ बुकलेट, बट इसका मैं पेटेंट फाइल नहीं करूंगा. क्यों? क्योंकि दिस इज अ कंटेंट. इसके अंदर कंटेंट है, इसके अंदर कंटेंट है. पेटेंट क्या है, पेटेंट कैसे दिया जाता है, वॉट एवर इज मेंशन्ड, दिस इज ऑल कंटेंट एंड दिस कम्स अंडर कॉपीराइट. कॉपीराइट देता है आपको प्रोटेक्शन फॉर दी कंटेंट. तो आप जो रिसर्च वर्क करते हैं,
ओके, रिसर्च वर्क को आप जब फाइल करते हैं तो आप उसके लिए कॉपीराइट लेते हैं या आप पब्लिशर के थ्रू कॉपीराइट लेते हैं, करेक्ट। पेटेंट में क्या होता है, जो आपका रिसर्च वर्क होता है, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, a lot of people are getting confused in what, कि यार ये मैं अपने रिसर्च पेपर का पेटेंट ले लेता हूँ। सबसे बड़ा जो ब्रिज गैप करना है हमको, यहीं पे समझना है, ओके, कि लोगों ने, किसी ने भी, कोई फैकल्टी है, मेंटर है, उन्होंने रिसर्च वर्क है, पब्लिश हो गया है, ठीक है, उस रिसर्च वर्क के लिए आपको पेटेंट चाहिए था। तो व्हाट यू नीड टू डेवलप, कि एक रिसर्च पेपर होता है, उसमें मोस्टली कंटेंट होता है, थ्योरेटिकल एनालिसिस होता है, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल होता है, बट वहां पे ना डिवाइस, इक्विपमेंट, मेथड, ये सारी चीजें मिसिंग होती हैं। तो जब आप अपने रिसर्च पेपर को पेटेंट के लिए कन्वर्ट करना चाहते हैं या फाइल करना चाहते हैं ना, उस रिसर्च मेथोडोलॉजी पे या उस रिसर्च वॉट एवर इट इज, ओके, कोई मॉडल हो सकता है, कोई डिवाइस हो सकती है, तो उसको ना आपको पेटेंट के फॉर्म में फाइल करना होता है, जिसमें आपको बताना होता है, क्या बताना होता है, 5 थिंग्स दैट आई विल टेल लेटर। बट पेटेंट को जब हम फाइल करेंगे इन केस ऑफ ए रिसर्च वर्क, तो हमें बताना होगा इन डिटेल व्हाट आई विल डिस्कस लेटर, ठीक है। तो पेटेंट को, रिसर्च पेपर को अगर हमें पेटेंट में कन्वर्ट करना है, तो हमें ध्यान रखना है कि हमें फिजिकल रियलाइजेशन दिखाना पड़ेगा। ओके, रिसर्च पेपर में मैक्सिमम क्या होता है, ज्यादातर आप, आई एम नॉट सेइंग कि रिसर्च पेपर इज नॉट हैविंग अ ग्रेट कंटेंट और रिमार्केबल कंटेंट, आई एम सेइंग रिसर्च पेपर को पेटेंट में फाइल करने के लिए थोड़े से आपको मॉडिफिकेशंस करने होंगे, आपको डिवाइस टोपोलॉजी बतानी होगी, वहां पे आप ज्यादातर न्यूमेरिकल या फिर आप प्रायर आर्ट के बारे में ज्यादा बताते हैं, ठीक है, कि पुराना रिसर्च पेपर में ये बताया, इसमें ये बताया, इसमें बताया, उसी को आपको पेटेंट में भी बताना है। बट पेटेंट में जब आप फाइल करेंगे तो उसको एक कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के फॉर्म में फाइल करेंगे, वहां आप बैकग्राउंड में बताएंगे कि किस किस रिसर्च पेपर्स में क्या क्या बताया गया है और मैं अब क्या करने जा रहा हूं। तो ये वाली चीज जो होती है ना, जो आप रेफरेंसेस देते हैं रिसर्च वर्क्स में, वो रेफरेंसेस वाली चीजें हैं, विद ए शॉर्ट समरी आप बताते हैं बैकग्राउंड ऑफ इन्वेंशन, ओके। और जो आपके रिसर्च पे आपने रिसर्च वर्क किया है, तो अगर उसमें कोई ड्राइंग्स है, कोई डिवाइस है, कंपोनेंट्स का अरेंजमेंट है, ओके, कुछ ब्लॉक डायग्राम्स है, वो सब आप फाइल करेंगे अंडर ड्राइंग्स। तो पेटेंट जब फाइल करेंगे, तो जो बैकग्राउंड होगा उसमें हम बताएंगे रेफरेंसेस, रेफरेंस पेटेंट पब्लिकेशंस, और रेफरेंस रिसर्च पेपर जो पहले से रिसर्च की जा चुकी है, उनको हम बताएंगे बैकग्राउंड में। और जब हम बात करेंगे ड्राइंग्स की, तो उसमें हम बताएंगे हमारे डिवाइस के बारे में, मीन्स इट विल बी ड्राइंग्स, लाइक इट मे बी, यू कैन से ब्लॉक डायग्राम, इट मे बी कंपोनेंट अरेंजमेंट, इट मे बी, यू कैन से सर्किटरी, वॉट एवर। तो ये हमें समझना होगा कि रिसर्च पेपर को हम पेटेंट में फाइल कैसे करें, जिससे कि वो पेटेंट एप्लीकेशन, ओके, इट गोज इन द प्रोसिक्यूशन एंड टुवर्ड्स द ग्रांट। नाउ कमिंग टू द पेटेंट थिंग डायरेक्टली, क्योंकि पेटेंट ही हमारा फोकस है। व्हाट इज पेटेंट? पेटेंट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रिलेटेड टू इन्वेंशन। आपने कोई आविष्कार किया, लेट मी टेक एन एग्जांपल, आपके कॉलेज की एक फैकल्टी है और 5 स्टूडेंट्स हैं, द 5 फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, दे आर वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट, फैकल्टी इज योर मेंटर, सो ऑल दीज 6 पीपल आर व्हाट, दे आर द इन्वेंटर। और आपके एप्लीकेंट हो गए आपके सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी। नाउ these are the applicant and inventor details, okay, so this is the right of what, applicant is having this right, okay. Now inventor is assigning this right to whom, applicant, and applicant is filing a patent, Swaraj University is filing a patent। तो पेटेंट कितने साल के लिए मिलेगा, फॉर एग्जांपल स्वराज यूनिवर्सिटी फाइलिंग अ पेटेंट टुडे, so it will start from today, the period of patent, okay, it will start from today, no matter it will get granted or it will get rejected or refused, जो प्रोटेक्शन है आपका आज से चालू होगा। तो इसलिए ये बोला जाता है कि जब भी आपके दिमाग में आपको लग रहा है कि कोई आइडिया है एंड यस यू आर रेडी टू रियलाइज इट, और आप ऑलरेडी रियलाइज कर चुके हैं, डोंट बी लेट। क्योंकि क्या है, ये वर्ल्ड इतना इवॉल्विंग है कि आप जिस डायरेक्शन में सोच रहे हैं उसी डायरेक्शन में कोई दूसरे रिसर्चर भी सोच सकते हैं। when you think your idea is physically realizable, yes, it is industrially applicable, it should have 3 requirements। one is novelty, नोवेल्टी मतलब उसमें नए फीचर होने चाहिए। इन्वेंटिव स्टेप, इन्वेंटिव स्टेप मींस ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ऑब्वियस लगे। एंड थर्ड थिंग इज इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी। अगर आपका इन्वेंशन, जिस प्रोजेक्ट पे आप वर्क कर रहे हैं, जिस रिसर्च वर्क पे आपने काम, रिसर्च थीम पे आपने काम किया है, ऑब्जेक्टिव पर, अगर उसका कोई इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन नहीं है, तो
ऐसी चीज को पेटेंट नहीं मिलता। तो तीन चीजें हमको ध्यान रखनी है, नोवेल्टी, इन्वेंटिव स्टेप, इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी। ज्यादातर रिसर्च वर्क, जो रिसर्च पेपर आपके पब्लिश होते हैं, ओके, उनमें आप कुछ नया ही कर रहे होते हैं, उसमें नॉन ऑब्वियस चीजें ही होती हैं, उसमें आप इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की बात भी करते हैं एट द लास्ट। आई व्हेन आई सी अ लॉट ऑफ you can say patent application, I used to search citation, in that I also find all these three things, but how to file it, वहां पे क्या होता है, रिसर्च पेपर में हो सकता है कि आपने बहुत शॉर्ट में बता दिया हो, बट इन पेटेंट्स यू नीड टू टेल ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। उसी को बोलते हैं हम फुल डिस्क्लोजर। मतलब आपको पूरा डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, पूरे तरीके से आपको बताना होगा मेरे इन्वेंशन क्या है, मैं कैसे इसको परफॉर्म करता हूं, क्या इसके कंपोनेंट्स हैं, एंड व्हाट इज द रिजल्ट आई एम गेटिंग। उसी को बोलते हैं फुल डिस्क्लोजर। तो जब भी पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करते हैं, यू हैव एन another opportunity, okay, what is the opportunity I am telling you? फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा है कि यार मेरा इन्वेंशन ना 90% ना रेडी है, बस 10% ना एनालिसिस बचा है, क्योंकि ना वो लैब में जाएंगे हम, नेक्स्ट महीने हमारी लैब की विजिट है, वहां पे परफॉर्म करेंगे, लैब हमारे स्टेट में नहीं है, बाहर है, और हमें कहीं और जाकर रिसर्च करनी है, इसकी 10% पार्ट बचा है। बट जस्ट थिंक, 90% पार्ट हमारा रेडी है, मतलब हमारा आइडिया इज ऑलमोस्ट रेडी, ओके, इट इज फिजिकली रियलाइज्ड, जस्ट what is remaining, testing is remaining, means the results are remaining, yes, क्योंकि हमें एक ब्रॉडर स्केल पे करना है, हमने लैब में परफॉर्म तो कर लिया है, बट हमें इंडस्ट्री लेवल पे इसको रेप्लिकेट करना है। तो हमें देखना है कि भाई बड़े स्केल पे इसकी एनालिसिस, इसके इफेक्ट्स कितने आते हैं, ओके। सो व्हाट यू विल डू, यू विल फाइल अ प्रोविजनल एप्लीकेशन टुडे, एंड विद इन 12 मंथ्स यू फाइल अ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, ओके। तो उस 12 महीने के टाइम में, फॉर एग्जाम्पल आज 18 अगस्त 2026 है, तो आज से 18 अगस्त 2027 तक आप उसको अपडेट कर सकते हैं। लेकिन अपडेट करते समय ये ध्यान रखना है कि हम उसमें कुछ ऐसा तो ऐड नहीं कर रहे हैं जो हमारे पुराने स्कोप से अलग हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कार की बात कर रहे हैं और हम कंप्लीटली वी आर कमिंग ऑन ए बाइसिकल, नो। तो ये स्कोप का ध्यान रखना है कि हमारी टेक्नोलॉजी जो है जिसपे हम वर्क कर रहे थे, जिस डिवाइस पे वर्क कर रहे थे, वो डिवाइस पे ही वर्क कर रहे हो, ओके। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइल अ प्रोविजनल एप्लीकेशन। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार आपको लगेगा यार मैं ना अभी फाइल नहीं करूंगा, और अगर मैं 12 महीने बाद फाइल करूंगा तो हो सकता है कि कोई ना कोई इसको कॉपी कर ले, क्योंकि ए लॉट ऑफ रिसर्च पीपल आर वर्किंग। मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था, वहां पे 10 लोगों ने इस आइडिया पर वर्क कर रहे थे। तो मुझे पेटेंट पहले पेटेंट फाइल कर देना चाहिए, कहा हाँ आपको करना चाहिए। जो 5-10% रह गया है ना, उसके लिए आप कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो आइडिया है वो ऑलरेडी डेवलप है, ओके, अगर वो फिजिकली रियलाइजेबल है, तो आप उसको आज ही फाइल करिए, और विद इन 12 मंथ्स, आज जो फाइल करेंगे एप्लीकेशन उसको बोलेंगे प्रोविजनल एप्लीकेशन, प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन हो जाएगी वो आपकी, और जो 12 महीने के अंदर आप अपडेट कर देंगे उसको बोलेंगे कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रिसर्च वर्क, रिसर्च पेपर्स, हम एकेडमिक्स के लिए ये सेशन कर रहे हैं, या मान लीजिए इसमें स्टार्टअप्स हैं, होता क्या है कि आप टेक्नोलॉजी पे वर्क करते हैं और कई बार ना आपको लगता है नहीं यार 5-10% मिसिंग है, कुछ और रह गया है, तो अभी पूरा नहीं हो पा रहा है, बट फाइल करूं नहीं करूं, आज ही करिए, 12 महीने के अंदर उसको अपडेट कर सकते हैं आप, उसको बोलेंगे कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। अगर आपका इन्वेंशन रेडी है तो आज ही कंप्लीट फाइल करिए। अच्छा, अभी तक आप लोग को कितना क्लियर है, कोई डाउट है, एनीथिंग? मैं बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ व्हाट इज पेटेंट एंड हाउ इट गोज। यस, एनी डाउट यू हैव टिल नाउ? Nice. यस, any query you have, you can mention in this chat box also. तो पेटेंट क्या होता है मैंने ये बताया। पेटेंट फाइल करने के लिए आप किन किन अपॉर्चुनिटीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, किन किन एक्ट के किन प्रोविजंस में आप प्रोविजनल से कंप्लीट जा सकते हैं, ओके, प्रोविजनल से कंप्लीट फाइल कर सकते हैं, इसका बेनिफिट लीजिए, ओके। रिसर्च पेपर को पेटेंट में कन्वर्ट करना है, व्हाट यू नीड टू गिव अ बैकग्राउंड सेक्शन, यू नीड टू प्रोवाइड द ड्राइंग्स। जो भी एनालिसिस है, मान लीजिए आपने कोई सॉइल वेस्ट एक्सपेरिमेंट किया है, आप एक फील्ड पे गए होंगे, वहां आपने ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, मॉइस्चर सब मेजर किया है, ओके, ऑल दीज डेटा आप उसको पेटेंट एप्लीकेशन में पुटअप करिए।
जो कंपोनेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल आई एम फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बैकग्राउंड, कोई साइंस फील्ड के भी होंगे यहाँ पे, आपने एक नया सिस्टम बनाया है जो कि फार बेटर है देन द प्रीवियस सिस्टम। आपने उसमें 11 कंपोनेंट यूज किए हैं। आपने 11 कंपोनेंट्स के बारे में बताइए कि हाउ इज द सर्किट अरेंजमेंट, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ दिस ब्लॉक्स, डिफरेंट ब्लॉक्स यू आर यूजिंग एंड व्हाट दे आर डूइंग। अगर कोई मैथमेटिक्स भी इन्वॉल्व है ना, तो वो मैथमेटिक्स को भी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में पुटअप करिए, क्योंकि जब एज अ पेटेंट एग्जामिनर मैं उसको देखूंगा तो मुझे समझ में आना चाहिए कि ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रियलाइज कैसे हो रहा है, व्हाट इज द मैथमेटिक्स बिहाइंड इट। मुझे पता ही नहीं चलेगा रिजल्ट कैसे आ रहा है। आपने लिख दिया एक फंक्शनल ब्लॉक, लेकिन आपने उस फंक्शनल ब्लॉक के बारे में नहीं बताया है कि व्हाट इज द एल्गोरिथम बिहाइंड दिस ब्लॉक, कैसे ये हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग ना एआई पे बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होंगे आजकल, एआई डीप लर्निंग। तो ये बताना बहुत जरूरी है आपके लिए कि एआई का इस्तेमाल जब आप करते हैं किसी भी इन्वेंशन में, तो आपके पास टेस्ट डेटा ट्रेनिंग डेटा भी होता है। लेकिन क्या होता है जब आप पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो वो टेस्ट डेटा और ट्रेनिंग डेटा देना भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने मान लीजिए कोई ईईजी या ईसीजी, इस पे कोई वर्क कर रहे हैं आप, ओके, दिस इज अ मेडिकल फील्ड रिलेटेड इन्वेंशन। लेकिन अगर हम उस फील्ड के इन्वेंशन को हम फाइल कर रहे हैं और उसमें कोई एआई बेस्ड डेटा यूज कर रहे हैं आप, या एआई का कोई एल्गोरिदम का यूज कर रहे हैं, उस एल्गोरिदम को पूरा बताना चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने एक रिसर्च पेपर देखा था कुछ दिन पहले, और वाकई में आई वाज अमेज्ड टू सी, उसमें ना टेस्ट डेटा था, उसमें ट्रेनिंग डेटा था, उसमें पूरी एल्गोरिदम भी थी, और इनपुट्स के बेस पे आउटपुट क्या आया ये भी था। तो इट वाज ए कंप्लीट डिटेल्ड रिसर्च वर्क विच वॉज लाइक काइंड ऑफ रेडी फॉर पेटेंट। मतलब उसके लिए पेटेंट अगर वो फाइल करेंगे तो वो फुल डिस्क्लोजर उसमें था। तो जब भी आप एआई बेस्ड डीप लर्निंग बेस्ड पेटेंट फाइल करते हैं, वहां पे टेस्ट डेटा ट्रेनिंग डेटा इनपुट आउटपुट ये सब बताइए। ओके, एल्गोरिदम भी बताइए। एल्गोरिदम बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप एल्गोरिदम नहीं बताएंगे, सबसे पहला क्वेश्चन उठता है ये इन्वेंशन कैसे होगा। ये इन्वेंशन ही अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर पेटेंट किस चीज के लिए ले रहे हैं। तो पेटेंट के लिए हमेशा फुल डिस्क्लोजर जरूरी होता है। ठीक है, आप बहुत सारे रिसर्च वर्क कर रहे होंगे, आपके किसी के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होंगे, किसी के मेजर प्रोजेक्ट होंगे, माइनर प्रोजेक्ट होंगे। तो आप सब लोग जब भी आप कोई आविष्कार कर रहे हैं, नया मॉडल बना रहे हैं, तो आप पूरा डिटेल पढ़ते हैं। मैं भी आपके जैसा स्टूडेंट था। ओके, might be some people having more qualification than me, but since I am working in this field, I am telling you, and as being a student in past, जब मैंने किसी प्रोजेक्ट वर्क पे काम किया था तो मुझे उस चीज के एक एक कंपोनेंट के बारे में पता था। माइक्रो कंट्रोलर, ओके, इसके रीडिंग क्या है, रेटिंग्स क्या है, व्हाट टू डू नेक्स्ट, व्हाट इज द एल्गोरिथम, व्हाट आर द स्टेप आई एम फॉलोइंग। तो ये सारी चीजें ना जो आपको पता है, ये पेटेंट एप्लीकेशन में लिखना है। ठीक है, हम जाते हैं आगे की तरफ। सो दिस इज क्वाइट बेसिक थिंग फॉर यू सिंस you already know about the patents. Okay, Michael Jackson thing, that inclination at, you can say, around 40-50 degree, whatever. Okay, that inclination was possible because of the, you can say, the invention that was inside the shoe. Okay, and that was a kind of anti gravity illusion. तो उनके लिए भी उन्होंने पेटेंट फाइल किया था। ओके, so this is all the data, and even young innovators are also there. Okay, so now coming to patent application filing एंड लाइक व्हाट टू डू, व्हाट फॉर्म्स, मुझे कौन से फॉर्म फिल करने हैं। तो जब मैंने स्टार्ट किया था ये सेशन, तब मैंने बताया था कि सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के 5 स्टूडेंट हैं, एक मेंटर है, 6 लोग हो गए। ये 6 लोग क्या है, आविष्कार करने वाले हैं, इन्वेंटर, एंड एप्लीकेंट इज सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी। ओके, या हो सकता है कोई यहाँ पे ऐसे भी हो जो सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के ना हो। ओके, यू माइट बी द इन्वेंटर एंड यू आर द एप्लीकेंट। आप खुद आविष्कार कर रहे थे, आप नहीं एप्लीकेंट, आप ही एप्लीकेंट बन गए, आप ही ने फाइल कर दिया। तो इस केस में क्या होगा, जो फॉर्म 1 है ना, वहां पे आप लिखेंगे डिटेल्स ऑफ इन्वेंटर, एप्लीकेंट, आपका एड्रेस क्या है, आपकी ईमेल आईडी क्या है, आपके पेटेंट का टाइटल क्या है। आपके रिसर्च वर्क में आपने कुछ टाइटल रखा होगा, और हो सकता है वही टाइटल आप पेटेंट एप्लीकेशन के लिए जा रहे हो, तो वो टाइटल डिटेल्स ये सारी चीजें आएंगी फॉर्म 1 में। अब जब मैंने आपको ये बताया था कि रिसर्च पेपर को हम पेटेंट में फाइल करेंगे तो किन चीजों का ध्यान रखना है, वो चीजें आएंगी फॉर्म 2 में।
सबसे इंपॉर्टेंट हो गया आपका फॉर्म 2। देखिए क्या क्या आ गया, डिटेल्स ऑफ इन्वेंशन, पहले आ गया टाइटल, फिर आ गया बैकग्राउंड ऑफ इन्वेंशन। बैकग्राउंड में वही चीज कि पहले कौन कौन से रिसर्च वर्क में क्या क्या बता दिया गया है, किस किस पेटेंट एप्लीकेशन का आप रेफरेंस दे रहे हैं जिनमें ये टेक्नोलॉजी डिस्कस की गई है। ओके, उसके बारे में आप बताएंगे बैकग्राउंड ऑफ इन्वेंशन। फिर ड्राइंग्स के बारे में बताएंगे, मैंने बताया आपको आपके पास हो सकता है 6-7 ड्राइंग्स हो, तो उन ड्राइंग्स को रिसर्च पेपर से उठाकर हमको ड्राइंग के सेट्स में लेके आना है, 1 2 फिगर 1 फिगर 2 फिगर 3 फिगर 4 लाइक दैट। ओके, फिर हम जाएंगे नेक्स्ट, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्राइंग। हमारे फिगर 1 में क्या डिस्क्लोज है, मान लो फिगर 1 इज सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ फंक्शन जनरेटर, तो वो सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ फंक्शन जनरेटर में हम फिगर 1 के बारे में बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल इट में है 5 कंपोनेंट, so you might be writing each and everything about this 5 component. Now brief description of the invention, invention में क्या हो रहा है उसके बारे में आप बता रहे हैं। ओके, वर्किंग also comes under this, वर्किंग भी बता रहे हैं। Now the most important part is claims. क्लेम्स वो फीचर होते हैं इन्वेंशन के जिनका आप दावा करते हैं कि मुझे ना इनके लिए पेटेंट चाहिए। देखिए मेरा इन्वेंशन कैसे होगा ये तो बताएगा मेरा डिस्क्रिप्शन, लेकिन डिस्क्रिप्शन में से ऐसे कौन से फीचर है जिनका मैं दावा करता हूं, वो आता है क्लेम। तो क्लेम में आप लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक पेटेंट एप्लीकेशन शो करता हूं। ओके, और ये देखिए इन्होंने बताया है, फील्ड बताई है इन्वेंशन की, बैकग्राउंड बताया है। ओके, और अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूं, इनका डिस्क्रिप्शन यहाँ खत्म हो रहा है। ओके, एंड नाउ दे आर कमिंग इन क्लेम्स, ये होते हैं क्लेम्स। वी क्लेम, हम क्या क्लेम कर रहे हैं, वो जो हमने स्पेसिफिकेशन में बताया है ना, वो तो क्या है, जस्ट अ मिनट, अभी आपको शायद दिख रहा होगा, पहले नहीं दिख रहा था ना। हाँ सर, अभी दिख रहा है। यस यस, तो ये आप देखिए ये एक पेटेंट एप्लीकेशन है। ओके, ये इनका फॉर्म 2 है। फॉर्म 2 के फर्स्ट पेज में आपने जो स्टैंडर्ड बना हुआ है आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, उसमें आपने टाइटल लिख दिया है, एप्लीकेंट का नाम लिख दिया, एड्रेस लिख दिया, फिर ये टेक्निकल फील्ड बैकग्राउंड आ गया। देखिए अब बैकग्राउंड के बारे में बता रहे हैं, ये कंप्यूटर नेटवर्क्स आर व्हाट। ओके, कभी कभी इसमें क्या होता है कि बैकग्राउंड में आप ये भी बताते हैं, जैसे मैंने बताया आप रिसर्च वर्क्स को यूज कर रहे हैं या उनसे रेफरेंसेस हैं जो आप रिसर्च वर्क में नीचे प्रोवाइड करते हैं, उनको यहाँ लेके आएंगे, आप बताएंगे कि इस इन्वेंशन में या इस रिसर्च वर्क में ऑलरेडी हो चुका है। फिर जब नीचे आएंगे तब आप बताना चालू करते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। ओके, दिस इज ऑल अबाउट दिस, ब्रीफ डिस्कशन ऑफ ड्राइंग्स आ गए, यानी कि यहाँ बताया फिगर 2 फिगर 3 फिगर 4 फिगर 5। फिर ब्रीफ डिस्कशन ऑफ द प्रेजेंट डिस्क्लोजर, व्हाट इज माय इन्वेंशन, इसके बारे में आप बता रहे हैं। फिर हम एट द लास्ट जाएंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, मतलब अलग अलग, कोई कोई टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा है, कोई कोई टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा है, बट ये 5 हिस्से जो है ना पेटेंट के कभी नहीं बदलेंगे एक फॉर्म 2 के, जिसमें पहला हो गया आपका ड्राइंग हो गया, क्लेम्स हो गया, एब्स्ट्रैक्ट, डिस्क्रिप्शन, एंड वन मोर थिंग, व्हाट इज इट, जस्ट अ मिनट, आई एम रीशेयरिंग माय स्क्रीन। यस, ये देखिए यहाँ पे 5 चीजें आ गई, एक तो आ गया क्लेम्स, एब्स्ट्रैक्ट, ड्राइंग्स, डिस्क्रिप्शन, फाइन। तो ये पांचों चीजें आपकी इंपॉर्टेंट होंगी यहाँ पर। नाउ coming to this form 3, but before coming to form 3 I want to tell one more thing about the claims. क्लेम्स में सर आप उन फीचर्स को पुटअप करेंगे जो फीचर्स आपको लगता है मुझे क्लेम करने चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल इन्होंने क्या क्लेम किया है देखते हैं हम। आई एम रीशेयरिंग माय स्क्रीन टू शो अ पेटेंट एप्लीकेशन टू यू। यस, तो आई थिंक इट इज विजिबल टू यू नाउ। यस यस सर। यस, सो इफ यू सी दिस गोइंग एट द बॉटम, देखिए यहाँ पे देखिए इन्होंने लिखा है ये हमारे फीचर हम क्लेम करना चाहते हैं। ए सिस्टम, एक सिस्टम है जिसमें अलार्म कैटेगराइजेशन कर रहे हैं हम लोग, उसमें क्या है, एक प्रोसेसर है, एक मेमोरी है, फिर रिसीविंग वन और मोर अलार्म इवेंट, क्योंकि अलार्म के लिए ना टाइम इवेंट होगा, जैसे हम अलार्म भरते हैं मोबाइल फोन में तो अलार्म बजता है, तो अलार्म इवेंट, देन डिटरमाइनिंग सम पैरामीटर्स, जनरेटिंग सम टिकट्स, लाइक दैट। ये आ गए मेरे सिस्टम क्लेम। ठीक है, हो सकता है मेरे पास मेथड भी हो तो मैं मेथड को भी ऐसे ही लिखूंगा। फिर जब आप क्लेम लिखते हैं
सारे जो इंपॉर्टेंट एसेंशियल फीचर है आपने क्लेम 1 में लिख दिए, बट आपको लगता है नहीं यार कुछ और भी है जो सब्सिडियरी है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ वो इसके बिना ना इन्वेंशन होगा नहीं, तो वो सारे फीचर्स भी आपने क्लेम 2, क्लेम 3, क्लेम 4 में कर दिया, उसको डिपेंडेंट बनाया आपने क्लेम 1 पर, कि सर जो क्लेम 1 में बता चुका हूं ना, उसके बाद भी मेरे पास कुछ है। ओके, व्हाट इज दिस? इट इज माय क्लेम 2, आई एम क्लेमिंग in addition to what is already claimed in claim 1. So this is how you you can frame your claims. अब कई लोग को क्या होता है, क्लेम फ्रेम करने में दिक्कत होती है या फाइलिंग करने में दिक्कत होती है, तो एक पेटेंट एप्लीकेशन जो है उसको आप खुद भी फाइल कर सकते हैं, या फिर यू कैन हैव अ एजेंट आल्सो which is given on IP India website. There is a patent agent register. आप उनके थ्रू भी कर सकते हैं, एंड यू कैन फाइल योरसेल्फ आल्सो, जस्ट लाइक जैसे आप अपना केस अदालत में खुद से लड़ सकते हैं, वैसे ही आप पेटेंट एप्लीकेशन खुद भी फाइल कर सकते हैं। आप चाहें जैसे अदालत में एक एडवोकेट को हायर कर सकते हैं, वैसे ही यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी होती है पेटेंट एजेंट, उसको हायर कर सकते हैं। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस दिस स्लाइड लिटिल बिट मोर कि कितनी फीस होती है। तो जो फाइलिंग की फीस है, आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, या मान लीजिए आपके कोई ऐसे कोई और प्रोफेसर में जुड़े हुए हैं जिन्होंने खुद से इन्वेंशन किया है, ठीक है, तो आप क्या हो गए, नेचुरल पर्सन हो गए सर। मान लीजिए यहाँ कोई स्टार्टअप जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो स्टार्टअप हो गए, तो आपके लिए जो है गवर्नमेंट ने फीस रखी है 1600, लेकिन अगर कोई कंपनी है उसके लिए है फीस 8000, ठीक है। ये है फाइलिंग की फीस, इसको बोलते हैं फॉर्म 1। नाउ फॉर्म 2 जो मैंने आपको बताया, ठीक है, एक तो हो गया टाइटल पेज, एब्स्ट्रैक्ट, ड्राइंग, क्लेम्स, ये सारी चीजें जो है इसके लिए 30 पेजेस तक कोई फीस नहीं है, ठीक है। 30 पेज से ऊपर जाते हैं तो फीस लगती है। ऐसे ही जो आपके क्लेम्स हैं वो 10 है, लेकिन अगर 10 से ऊपर जाएंगे तो फीस लगेगी, फाइन। और ये फीस के लिए कुछ नहीं करना है आपको, गूगल पे जाएंगे, आप टाइप करेंगे फीस IP इंडिया पेटेंट्स, पहली या दूसरी लिंक पे आपको पूरा शेड्यूल ऑफ फीस मिल जाएगा। बट ये एक बेसिक फी का आइडिया मैं इतना दे रहा हूं कि 5600 रुपए में 5600 यू कैन फाइल अ पेटेंट एप्लीकेशन। ओके, और अगर आप कंपनी है तो 28,000, जिसमें से कि 1600 रुपए तो आपकी फाइलिंग की फीस है फॉर्म 1, एंड फॉर्म 18 रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन उसकी फीस है 4000। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कि पेटेंट एप्लीकेशन फाइल की, एब्स्ट्रैक्ट बनाया, ड्राइंग बनाए, क्लेम, स्पेसिफिकेशन सब बना लिया, टाइटल पेज भी बना लिया, फॉर्म 2 इज रेडी, फॉर्म 1 इज ऑल्सो रेडी, फाइल्ड। नाउ व्हाट टू डू? अब आपने फॉर्म 18 भी फाइल कर दिया, यू कैन फाइल इट ओके टुडे, ओके, और विद इन द प्रिस्क्राइब टाइमलाइन। नाउ दीज 5 फॉर्म्स आर एसेंशियल। लेकिन एक चीज आपको और बताता हूं मैं कि अगर ये आपके लिए जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि आप रिसर्च फील्ड में, और एक एक्सपर्टाइट एग्जामिनेशन नाम की भी एक चीज होती है, मतलब मैं अपना एग्जामिनेशन फास्ट प्रोसेसिंग भी करा सकता हूँ। कैसे कराऊंगा? उसके लिए मैं फॉर्म 18A फाइल कर दूंगा। 18A वो कौन फाइल कर सकता है? वो कौन कौन फाइल कर सकता है? इन केस ऑफ जॉइंट एप्लीकेंट, इफ वन एप्लीकेंट इज फीमेल, वो लोग फाइल कर सकते हैं, एंड इफ द institute or the college whatever, okay, they are like financed from central or state government, or they are enacted by the central state government act, okay, so in these cases, or you are a startup, हो सकता है आप में से 5 स्टूडेंट्स अगले ही साल ग्रेजुएट हो रहे हो और अपना स्टार्टअप तैयार कर रहे हो, यार अपन को इस टेक्नोलॉजी पे काम करना है, तो आपके पास एक स्टार्टअप सर्टिफिकेट होगा, ओके, तो वो चीजें अगर आपके पास है, एलिजिबिलिटी है, आइदर यू आर ए स्टार्टअप और यू आर फाइनेंस फ्रॉम द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ओके, और इन केस ऑफ जॉइंट एप्लीकेंट, वन एप्लीकेंट इज फीमेल, तो आप इसका एडवांटेज ले सकते हैं। ओके, इसमें जो होता है फीस जो है ना रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन की, वो बढ़ जाएगी आपकी 4000 से 8000 हो जाएगी। ओके, और एक और फॉर्म होता है फॉर्म 9 अर्ली पब्लिकेशन। किसी किसी को ऐसा रहता है ना कि यार हम जल्दी पब्लिकेशन करा लेते हैं अपने पेटेंट एप्लीकेशन का, बाकी प्रोसिक्यूशन चलता रहेगा, तो एक फॉर्म 9 आप फाइल कर देते हैं अर्ली पब्लिकेशन के लिए। तो ये आपको इसलिए बता रहा था मैं कि आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा बेनिफिट रखा है। ओके, अगर आप स्टार्टअप हैं, अगर आप फीमेल एप्लीकेंट हैं और जॉइंट एप्लीकेंट में वन एप्लीकेंट फीमेल है, या आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से आपके पास फंडिंग आ रही है, ओके,
So in that case, you can file a expedite examination जिसमें आपकी प्रोसेसिंग फास्ट होगी by paying some amount of fee. Okay. और इसकी फीस की डिटेल भी आपको वन बाय वन एक एक चीज की फीस जाननी है तो आप लिखेंगे. फॉर एग्जांपल आई कैन help you how to do that and how I check fees regularly. Okay, so just a minute. मुझे फीस चेक करनी है कि आईपी इंडिया पे कितनी फीस होती है. ओके, लेट्स डू इट. ओके, मैं गूगल पे जाता हूँ और आई विल राइट आईपी इंडिया फीस पेटेंट्स. ठीक है, यहाँ पे गए हम, फॉर्म्स एंड ऑफिशियल फीस. यहाँ आ गया फर्स्ट शेड्यूल. मैंने इस पीडीएफ को खोला. नाउ यू कैन फाइल ईच एंड एवरीथिंग. जो 1600 रुपए की मैं बात कर रहा था यहाँ लिखा हुआ है. 8000 रुपए की बात कर रहा था वो भी लिखा हुआ है. ओके, so this is how you can see the fees structure also. Just by typing fees IP India patents, you will get the first link of IP India. Okay, this is how I do it. आपके पास कोई और तरीका भी हो सकता है, but this is the way I am doing it. तो ये फीस का मैंने बताया आपको. अब मैं जाता हूँ कि आपने एप्लीकेशन फाइल तो कर दी है, पर सर अब क्या होगा? अब कैसे आगे बढ़ेगी हमारी एप्लीकेशन? आपने बता दिया कि हम नॉर्मल फाइलिंग कर सकते हैं. आपने बता दिया हम एक्सपेडाइट फाइल कर देंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट पे करके अगर हम एलिजिबल हैं तो. अब क्या होगा सर आगे? तो वो देख लेते हैं. ये देखिए, मान लीजिए आपने इन्वेंशन फाइल कर दिया है, पेटेंट एप्लीकेशन फाइल हो गई है, आपने फॉर्म 18 रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फाइल कर दिया है. अब पेटेंट ऑफिस क्या करेगा? पेटेंट ऑफिस आपकी एप्लीकेशन में चेक करेगा सबसे पहले फॉर्मल एग्जामिनेशन. फॉर्मल एग्जामिनेशन मतलब कि भाई आपने फीस प्रॉपर पे की है कि नहीं की है, ड्राइंग्स आपके ठीक है कि नहीं है. ओके, एटसेट्रा एटसेट्रा. और टेक्निकल एग्जामिनेशन जो होगा ना, वहां पे मेन चीज आएगी आपकी कि ये इन्वेंशन को पेटेंट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए. तो क्या होगा, टेक्निकल एग्जामिनेशन जब हम करेंगे तो हम कैसे करते हैं टेक्निकल एग्जामिनेशन? फॉर एग्जाम्पल आपने पेटेंट एप्लीकेशन फाइल की और हमारे पास हमारे सर्च में 3 डॉक्यूमेंट निकल के आते हैं. ओके, उन 3 डॉक्यूमेंट में हमको ऐसे फीचर मिल रहे हैं जो कि फॉर एग्जांपल F1 F2 F3 these 3 आर द फीचर्स. ओके, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट. ये तीनों फीचर को मेरे को अगर किसी डॉक्यूमेंट में मिलते हैं तो वो बन जाता है प्रायर आर्ट. तो वो जो मुझे 3 या 4 या 5 जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट लगेंगे कि सर दिस फीचर ऑफ योर इन्वेंशन इज ऑलरेडी देयर इन दिस रिसर्च वर्क और पेटेंट लिटरेचर, वो टेक्निकल एग्जामिन करके हम आपको पहली रिपोर्ट देते हैं, फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट. उसमें हम बताते हैं कि सर ये 4 डॉक्यूमेंट हैं आपके, जिनमें हमारे तरफ से हमने आपको 4 डॉक्यूमेंट लगा के दिए. इन दीज डॉक्यूमेंट्स there are some features that are already there are some features which are matching with your invention. For example, आपने एक soil based experiment किया है कोई. ओके, कोई रिसर्च वर्क आपका वो है, तो आपने जो भी उसमें कंपोनेंट्स यूज किए हैं या जो भी फीचर्स हैं, हो सकता है मेरे को मेरे 4 डॉक्यूमेंट में मिल गए, तो मैंने वो चारों डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की. उसको बोलते हैं फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट. हो सकता है आपने कोई ड्राइंग क्लियर नहीं दी हो या कोई फीचर मुझे क्लियर ना हो, या मुझे ऐसा लग रहा है कि यार कोई कंपोनेंट आपने अच्छे से डिस्क्लोज नहीं किया है, तो मैं उसको भी इसमें लिखूंगा. ठीक है, तो मैं उसमें क्लैरिटी का ऑब्जेक्शन रेज करूंगा, मैं इसमें सफिशिएंसी का करूंगा, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपके इन्वेंशन से रिलेवेंट लगते हैं. उसके बेसिस पे मैंने आपको फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट दे दी. फिर आपने रिप्लाई फाइल किया, आपने देखा अच्छा कंट्रोलर ने ये ऑब्जेक्शन रेज किए हैं तो इनका रिप्लाई करना है. तो यू विल ट्राई टू मेक आउट लाइक द डिफरेंसेस. आप बताएंगे कि सर मैं आपने D1 D2 D3 या P1 P2 P3 ये 3 प्रायर आर्ट साइट किए हैं, ये तीनों प्रायर आर्ट जो आपने साइट की हैं ये मेरे इन्वेंशन से ऐसे अलग हैं. या फिर मैं क्या हूँ, टेक्निकली एडवांस हूँ, मैं इनसे ऐसे अलग हूँ, मेरे पास ये फीचर्स अलग हैं. ओके, सो आई विल टेल दीज ऑल दीज थिंग्स. ओके, कैसे बताऊंगा? मैं रिप्लाई करूंगा. ओके, सो व्हाट हैपेंस, यू फाइल अ पेटेंट एप्लीकेशन, पेटेंट ऑफिस आपको एक फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट देगा और आप उसका रिप्लाई करेंगे. उसको बोलते हैं रिप्लाई टू FER. आप उसमें खुद को डिफेंड करेंगे. जैसे मैं कोर्ट में गया, मेरे ऊपर 4 आरोप हैं, तो उन चारों आरोपों के खिलाफ मुझे अपने बयान देने होंगे. तो वो बयान जो आप देंगे हमारे FER के बाद, उसको बोलते हैं रिप्लाई टू FER. अब FER का रिप्लाई दे दिया, कंट्रोलर के पास आपका ऑब्जेक्शन का रिप्लाई आया, कंट्रोलर देख रहे हैं ओके, इन्होंने ये बताया है कि D1 D2 D3 जो प्रायर आर्ट कंट्रोलर ने लगाए थे वो
ऐसे 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 ये डिफरेंसेस हैं, और सर ये फीचर क्लियर नहीं था तो ये फीचर ऐसे क्लियर है, ये सफिशियंसी का आपने ऑब्जेक्शन लगाया है, ये ऐसे क्लियर है, ओके। आपने सारा रिप्लाई दे दिया, अब मैं उस रिप्लाई को पढ़ूंगा, और अगर मुझे लगता है ऑल ऑब्जेक्शंस आर मेट, तो मैं उस पेटेंट पे डिसीजन लूंगा ग्रांट का। लेकिन अगर मुझे लगता है कि नहीं, अभी भी कुछ ऑब्जेक्शन रह रहे हैं, देयर इज समथिंग दैट इज मिसिंग इन दिस एप्लीकेशन, या कोई ऑब्जेक्शन अभी बचे हैं डिस्कस करने को, तो मैं आपको एक हियरिंग की अपॉर्चुनिटी दूंगा। जैसे कोर्ट में आपको सुनवाई होती है ना कोर्ट में, वैसे ही ऐसे ही वर्चुअल जुड़ता हूं मैं, यही मेरी सीट होती है। एंड आई विल टेल यू एंड डिस्कस विद यू, सर दीज आर द ऑब्जेक्शंस दैट वर रेज्ड इन एफईआर, आपने इनका रिप्लाई ये किया, लेकिन अभी भी कुछ ऑब्जेक्शन ऐसे बचे हैं जिन पे हमें डिस्कशन करना है आपसे। तो उसको हम हियरिंग नोटिस बोलते हैं। हियरिंग नोटिस में मैं आपको ऑब्जेक्शन भेजूंगा, हियरिंग में ऐसे ही आप और मैं अपियर होंगे वर्चुअली, एंड वी विल डिस्कस योर इन्वेंशन एंड द रिलेटेड ऑब्जेक्शन। फिर आपके पास 15 दिन का समय होगा टू फाइल अ रिप्लाई, उसको बोलते हैं रिटर्न सबमिशन, ओके। जिसमें आप ये लिखते हैं कि सर हियरिंग नोटिस में जो आपने ऑब्जेक्शन रेज किए थे, या जो हियरिंग डिस्कशन था, उसके बेसिस पे हमारा ये सबमिशन है। मान लीजिए मैंने हियरिंग नोटिस में आपको 3 डॉक्यूमेंट साइट किए, P1 P2 P3 या फिर D1 D2 D3, तो आप लिखें, और उनमें मान लीजिए नोवेल्टी या इन्वेंटिव स्टेप का ऑब्जेक्शन था, तो आप उसका रिप्लाई करेंगे और आप बताएंगे कि नहीं, कैसे आपका इन्वेंशन नोवेल है या इन्वॉल्व करता है एक इन्वेंटिव स्टेप को, ओके। सो दिस इज हाउ दिस पेटेंट एप्लीकेशन थिंग्स प्रोसिक्यूशन थिंग वर्क्स अपॉन। हम आपको प्रायर आर्ट प्रोवाइड करते हैं, ओके। हम बताते हैं कि ये प्रायर आर्ट्स हैं जो आपके इन्वेंशन से मिलते जुलते हैं, आप उनका रिप्लाई करते हैं, अगर रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी है तो पेटेंट ग्रांट होता है। लेकिन अगर अभी भी ऑब्जेक्शन बचे हैं, कुछ क्लैरिटी का है, या मान लीजिए नोवेल्टी का है, ओके, कोई प्रायर आर्ट अभी भी लगे हुए हैं, तो आप हियरिंग नोटिस के बेसिस पे हियरिंग में अपियर होते हैं, आप रिटर्न सबमिशन फाइल करते हैं, फिर कंट्रोलर उसमें फाइनल डिसीजन लेते हैं कि अगर हाँ सारे ऑब्जेक्शन मीट करते हैं तो पेटेंट मिलना चाहिए, दैट इज ग्रांट। और अगर हमें लगता है कि सारे ऑब्जेक्शन मीट नहीं हो रहे हैं, तो हम उसको बोलेंगे पेटेंट इज रिफ्यूज्ड, तो एक ऑर्डर उसके बेसिस पे लिख दिया जाता है। अब हम आगे चलते हैं। ये मैंने आपको बताया पेटेंट प्रोसिक्यूशन, यस। नाउ वी गो लिटिल डाउन, दिस इज अ टाइमलाइन, ये टाइमलाइन आपको नेट पे भी मिल जाएंगी। जैसे मैंने आपको जो एक एडवांटेज बताया था, ये हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी प्रोविजनल फाइल कर सकते हैं, उसके बाद उसको कंप्लीट कर लीजिए 12 महीने के अंदर, ठीक है। आज आपने फॉर्म 1 फाइल किया है, तो आपके पास रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फाइल करने के लिए, फॉर्म 18 फाइल करने के लिए 48 मंथ्स है, ठीक है। तो ये बेसिक टाइमलाइंस हैं जिनका आप ध्यान रख सकते हैं। नाउ वी कैन हैव सम क्वेरीज फ्रॉम योर साइड, दिस इज ऑल अबाउट पेटेंट्स, और क्वेरीज से आप लोग ज्यादा समझ पाएंगे, जो लोगों की क्वेरीज रही होंगी उनसे हम ज्यादा समझेंगे, यस। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी। मेरा खुद का स्टार्टअप है सर, इट्स बाय द नेम टाइसेंट एनर्जी। हम ईवी फास्ट चार्जिंग में वर्क करते हैं सर। ओके। तो हमारा सर एक इन्वेंशन या बेसिकली एक काम कर रहे हैं हम लोग कंट्रोलर साइड पे, जहाँ हम्म पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन का है, हम्म ओके। बट ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, या हम लोग इतने ज़्यादा स्टार्टअप को बिल्ड करने में ऑक्यूपाइड है दैट वी डोंट हैव द एक्सपीरियंस और द नो हाउ ऑफ फाइलिंग अ कंप्लीट पेटेंट। प्रोविजनल तो फाइल कर देते हैं क्योंकि उसमें लिमिटेड ये है, बट कंप्लीट नहीं फाइल कर पाते हैं। तो सर उसके लिए हम लोग है ना फिर किसी एजेंसी को ढूंढते हैं या एजेंट को ढूंढते हैं, एंड हम्म कॉस्ट में बहुत ज्यादा डिविएशन होता है। आपने जैसे बताया 5600 ये गवर्नमेंट फी है, राइट। हम्म हम्म अबव एंड बियॉन्ड वी गेट अ डिविएशन की कोई 50,000 से स्टार्ट करता है, कोई 1.5 लाख तक जाता है। हम्म सो हमें ये नहीं पता चलता, और उसके बाद अगर 1.5 लाख वाले को हम बोलते भी हैं कैन यू अश्योर अस दैट इवन आफ्टर प्रायर आर्ट, अगर आप बोल रहे हो कि प्रायर आर्ट अच्छा है, क्लियर है, योर दिस इज नोवल, दे कांट गारंटी कि ये हम्म। पेटेंट मिलेगा मिलेगा। हाँ सर, तो ये गारंटी इसलिए नहीं कर सकते, यहाँ पे थोड़ा सा रुकूंगा आपको, क्वेरी कंटिन्यू करेंगे आगे। देखिए क्या है, आपने इन्वेंशन फाइल किया, मान लीजिए आपका इन्वेंशन है, ओके, और उसके लिए मैंने 3 पैराडाइड आपको साइड किए, D1 D2 D3, हम्म, तो हो सकता है कि उनमें सारे फीचर कवर हो रहे हो। ठीक अगर है। उनमें सारे फीचर कवर हो रहे हैं और उनको मैं कंबाइन कर सकता हूँ आपके इन्वेंशन तक पहुंचने के लिए, हम्म, तो उस केस में पेटेंट नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बार में ही ग्रांट या रिफ्यूज हो गया है, नो, पहले एफईआर जाएगी, एफईआर का रिप्लाई आएगा, अगर कंट्रोलर को लगता है नहीं अभी भी ऑब्जेक्शन मीट नहीं हो रहे हैं, या उनको लगता है कि कोई और स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट है बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग, तो वो हम्म, आपको प्रोवाइड करते हैं,
फिर उसको हियरिंग में डिस्कस करते हैं और आपको रिटर्न सबमिशन में भी एक अपॉर्चुनिटी रहती है। यस, अब आप बोलिए। सर मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो एजेंसी, सॉरी, सो आई एम टॉकिंग अबाउट द एजेंट हु इज बेसिकली हेल्पिंग मी फाइल। क्या हुआ है ना सर, हमने लास्ट टाइम एक एजेंसी को दिया था, सो इट वाज लिस्टेड इन स्टार्टअप इंडिया, ये जो आपका स्टार्टअप यस, इंडिया डीपीआईटी के जो यस, रजिस्टर्ड मैं वो इसमें भी ना, बोलने तो वाला था कि उनके थ्रू अगर आप जाते हैं तो उसमें कुछ फीस रिडक्शन भी रहता है। जी, जी। सर फीस रिडक्शन तो सर अलग बात है, बट हमने पेमेंट देने के बाद है ना, दे नेवर टुक इट फॉरवर्ड। ओके, मतलब फी मिल गया, नाउ आई एम नॉट वर्किंग, जाओ जो कर लो, फॉलो अप करना है जो करना है कर लो, ऐसा हो रहा है। ओके। सो विच इज काइंड ऑफ अ वेरी डिवास्टेटिंग केस कि यार हमने पैसे दिए हैं, नाउ दे आर सेइंग लाइक ओके इसमें मैं ये फाइल करके ये कर रहा हूँ एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड ही इज नॉट शोइंग अप एनी इंटरेस्ट की नोवेल्टी है, प्रायर आर्ट सर्च करके दे दिया, लुक्स गुड, उसके बाद हमें बस आगे कुछ भी नहीं कर रहा है, इट्स जस्ट वहां पे है, कभी सबमिट किया, ये प्रोविजनल अभी तक पड़ा हुआ है हमारा, जबकि टेक्नोलॉजी बन के हमारा प्रोडक्ट भी रेडी। हम्म। सर, ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने किसी को फीस पे कर दी है और ऑलरेडी वो डीपीआईटी के स्टार्टअप फैसिलिटेटर्स में लिस्टेड है, तो आप ऐसे केस में सर मेल कर सकते हैं ऑफिस ऑफ सीजीपीटीडीएम को कि सर हम ऐसा ऐसा किया है और ये स्टार्टअप फैसिलिटेटर प्रोग्राम में ऑलरेडी लिस्टेड है, बट व्हाट इज हैपेंड दैट वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी रिस्पांस। सर, आपने उनसे फॉलो अप लिया है, कभी पहले बात हुई आपकी, क्या बोलते हैं वो? सर बहुत फॉलो अप लिया है, अभी तो फोन भी नहीं उठाते सर। ओके, तो इन Anyway, दैट sir, केस that दैट is इज what द you are suggesting. That is what you are suggesting is a aftermath. यस, ठीक है। द मैं बोल ओनली रहा हूँ कि थिंग मैं सी। अभी किसी नए नए पेटेंट अटॉर्नी को अगर मैं ये करूंगा, तो व्हाट इज द एश्योरिटी दैट मेरे साथ ये दोबारा नहीं होगा? Sir, in this thing, what happens? Let me tell you one thing. What happens? What is a patent agent? Let me tell you. Our office conduct a agent examination. Even I was a part of it when it was around 2020, happened in 2022 due to COVID. So patent office conduct an examination for the agents, and those who clears this, they get a patent agent registration number. Okay. हम्म So those who clears this, they get a patent agent registration number. हम्म But the for example, you are having an agreement with your patent agent. Patent office has nothing to do with it. But if you are talking about particular the startup facilitators, okay, हम्म for facilitating the patents and other applications, in that case, they are in that case you can write to particular office of CGPTDM in this regard that हम्म sir we have yes, I don't think that that will happen again for you because a lot of startup file applications and they appear uh, uh, before me, okay, in the hearing through their respective agents who are SIPP startup facilitators, okay. So I don't think that that will happen again, but what you can do that you can write a mail, okay, and also put that particular agency or whoever has taken your work and not done anything up to the mark or whatever you think should be done. Okay, you can also put them so that at least office can take note of uh, uh, such agencies Got like who are taking the money of the applicant and not prosecuting like that. श्योर सर। Yes. एक तो ये था मेरा, सेकंड क्वेश्चन था इन लाइन में सर, अभी इतना ज्यादा डिविएशन होता है, कोई 50,000 पे रेडी हो जाता है, कोई 1,50,000 तक मांगता है एंड ऑल दोस थिंग्स, तो हाउ डू वी जज विच पर्सन इज गुड? क्योंकि सबको अगर बोलते हैं तो ये 4-5 पेटेंट दिखा देते हैं विच इज फाइल्ड, ठीक है। Sir, it is always see, patent office has nothing to do with which agency you are choosing. Why I am saying this because patent office just conducts an exam and provides the patent agent registration number. Okay, हम्म now it is up to you and your agent. It's like you are getting a patent. पेटेंट ऑफिस का सारा जो काम है ना वो पेटेंट तक है। ओके, आपने उसके लिए एजेंट हायर किया है, आपने उसने कितने कितने लाइक आपने वॉट एवर द वैल्यू यू डिसाइडेड फॉर योर पेटेंट प्रोसिक्यूशन, जो भी हम्म आपने अमाउंट या मनी डिस्कस किया है, ओके, इट इज हम्म अप टू यू एंड योर पेटेंट एजेंट। ओके, पेटेंट उसके लिए ऑफिस का सर इसमें कोई वो नहीं है, दैट दैट नहीं इज सर, क्लियर। इसमें नहीं है। यस, बिकॉज सर पेटेंट ऑफिस ने आपको दोनों लिबर्टी दे रखी है, एक है कि आप खुद फाइल कर सकते हैं, एक है कि आप किसी एजेंट के थ्रू फाइल करा सकते हैं। ओके, आप ये भी कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कई बार क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि यार हमारे पास कोई लैंग्वेज बैरियर या ऐसा ना हो, तो उसमें आप ना स्टेट मतलब सिटी नेम और नाम के हिसाब से ये भी सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे भी सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल जस्ट अ मिनट, आई विल शेयर a tab here and
तो सर यही दो मेरे क्वेश्चन थे सर। Yes, yes, I am हाउ just डू telling you that how you can do it. आपको आई थिंक ये दिख रहा होगा टैब जो मैंने सर्च किया है, राइट? ठीक है। मैं भी कैसे ऑथराइजेशन चेक करता हूँ वो आपको बता रहा हूँ। मैं गूगल पे टाइप करता हूँ। इवन सर मैं आपको बताऊँ अलग, मैं जब जाता हूँ कहीं पे भी, आईपीआर सेशन भी मैंने पहले लिए हैं, तो उनमें एक फैकल्टी मुझे मिले थे, उन्होंने कहा था सर मुझे ना पहले और दूसरे इन्वेंशन में बहुत टाइम लगा था, इसके बाद मेरी आदत बन गई, मेरे पास टाइम भी था क्योंकि मेरा रिसर्च एक डेडिकेटेड वर्क था, तो मैं खुद फाइल करने लगा। ठीक है, हाँ, लेकिन हर आदमी के पास इतना टाइम भी नहीं होता सर। ओके, तो करेक्ट। और ना, हाँ, और हो सकता है कि आप जैसे बोल रहे हैं कि हमें स्टार्टअप बिल्ड करने में टाइम लग रहा है, यस, तो आप उसके प्रोसीजर में लगे हुए हैं, जबकि पेटेंट इज ए डिफरेंट थिंग फॉर यू। सो उस करेक्ट। केस में ऑब्वियसली जस्ट लाइक एन एडवोकेट आई विल हैव एन एजेंट। ओके, तो आप यहाँ पे ना सर सिटी, स्टेट, ठीक है, इनसे भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ये एक आपके पास एक और वो है कि आप जो आपको लग रहा है तो आप वैसे सर्च कर सकते हैं, एंड ओके। यू कैन टॉक टू अ नंबर ऑफ पीपल एंड टॉक टू देम हाउ माय प्रोसिक्यूशन विल वर्क। प्रोसिक्यूशन तो ऐसे ही होगा, लेकिन आप जैसे बोल रहे हैं कि हमें मॉनेटरी वैल्यू डिसाइड करने में इशू हो रहा है, तो आप वहां पर डिस्कस कर सकते हैं कि सर दिस इज माय एप्लीकेशन, ओके, व्हाट आर योर प्रोसिक्यूशन चार्जेस। ओके, यू कैन टेक नोट फ्रॉम 5 to 7 people, okay, and you can discuss with them. फाइन, गॉट इट सर। This is like like how good you are in like having an agreement at an economic cost or whatever you think. परफेक्ट। Yes, it is up to you only. Patent office has nothing to do with how many charges one people or one agency or one agent is charging from you. Yes. बट हाँ, ये जरूर कर सकते हैं कि पेटेंट एजेंट नंबर जो है वो चेक कर सकते हैं आप वेबसाइट पे कि कोई फ्रॉड तो नहीं है, क्योंकि क्या है सर, ऐसा भी जाता है, तो आप ये जरूर आप चेक कर सकते हैं, जो मैंने आपको अभी लिंक बताई थी, आप कहें तो एक बार फिर से मैं शेयर कर देता हूँ सिस्टम सर में। मैंने वो स्क्रीनशॉट ले लिया सर। यस यस, या, तो उस पे थैंक यू। आप सर्च कर सकते हैं आईपी इंडिया पेटेंट एजेंट रजिस्टर, हम्म, उस पे आप सर्च कर सकते हैं उनके बेसिक डिटेल्स, उनका नाम, फोटो भी वहां पर डिस्प्ले होता है। यस। ठीक। हेलो ठीक। हाँ जी सर, बोलिए। सर, पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर कोई स्टूडेंट या कोई जी एंटरप्रेन्योर करना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट रिसोर्सेज क्या होगा, वो मटेरियल सर, और सब कैसे प्रिपेयर करें यस उसका, एज फार एज द यस मटेरियल इज कंसर्न, yes, since लर्निंग I have रिसोर्सेज। handled this examination, I can tell you yes in detail, no issue. So what has happened that पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन के लिए सर जो सबसे इंपॉर्टेंट बुकलेट आपकी बनती है, जैसे किसी भी इंडियन एग्जाम की आप प्रिपरेशन करते हैं, व्हाट यू विल डू, आप जो मेन सिलेबस है वो पढ़ेंगे, तो मेन सिलेबस इज नथिंग बट पेटेंट एक्ट एंड रूल्स। ओके, वही आपको कवर करना है। लेकिन आप क्या करते हैं हमेशा, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, यू गो थ्रू प्रीवियस पेपर्स। ओके, यू ट्राई टू गो इनटू द माइंडसेट ऑफ एग्जामिनर, जो पेपर सेट करते हैं, उनके आप माइंड में जाने की कोशिश करते हैं। व्हाट यू विल डू, यू विल चेक यार कौन से क्वेश्चन है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑप्शन। ओके, सो you will get a like a detailed idea from the last year question paper, which are available on already on the IP India website, सर and सर the two books you need, agent patent acts and patent rules for the agent exam preparation. Yes. बट सर उसमें प्रॉब्लम ये रहता है कि अगर स्टूडेंट है वो पेटेंट एक्ट अगर वेबसाइट से में जाके पढ़ने लगे तो वो पूरा टेक्नोलॉजिकल टर्म होता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई सिंप्लीफाइड वे में कोई बुक्स हो या कोई मटेरियल हो या कोई साइट हो जो स्टूडेंट रिफर कर सके पढ़ने के लिए, क्योंकि वो पूरा लीगल टर्म होता है, तो पहली बार कोई पढ़ेगा बच्चा या कोई भी एंटरप्रेन्योर, तो उसमें उसको समझ भी नहीं आएगा कि ये लीगल पूरा कैसे वो उसको कैसा इंटरप्रिटेशन करता है, इसलिए वो डायरेक्ट पेपर में जाने के लिए ढूंढते रहते हैं। सर तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि you can go to a lot of people also upload a lot of kind of lectures on patent agent exam. ओके, आप सर देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि सर फॉर एग्जांपल मैं भी एक साइंस बैकग्राउंड से आया था इस ऑफिस में, और मेरे लिए भी साइंस से टेक्नो लीगल होना था। यस, तो आई इवन ऑल्सो वेंट थ्रू अ ट्रेनिंग, ओके, एंड दैट ट्रेनिंग combined my technical knowledge with the legal knowledge, so it's like that. So उसको सर ऐसे आप समझ सकते हैं कि कोई आप सैंपल स्पेसिफिकेशन आईपी इंडिया पे सर्च करते हैं, जैसे मैंने आपको एप्लीकेशन बताई, ओके, उस हिसाब से आप समझने की कोशिश करेंगे। जैसे नोवेल्टी है, व्हाट इज नोवेल्टी, नोवेल्टी मींस समथिंग दैट इज न्यू, वो नए फीचर्स। इन्वेंटिव स्टेप क्या है कि मैंने 3 डॉक्यूमेंट लगा के दिए हैं आपको, और वो तीनों डॉक्यूमेंट से आपके इन्वेंशन पे अटैक हो रहा है, तो यू विल ट्राई टू सेव,
कि सर मैं D1 से अलग हूँ, D2 से अलग हूँ, D3 से अलग हूँ, ऐसे अलग हूँ मैं, आपका ऑब्जेक्टिव है ये है, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है। तो ऐसे समझने की कोशिश करनी पड़ेगी सर। लेकिन कुछ चीजें जो सेक्शन और एक्ट होते हैं, अगर आप किसी भी लॉ बेस्ड एग्जाम में जाएंगे तो यू हैव टू, यस, आपको उसको पढ़ना ही होगा, मतलब रिलेट तो करना ही होगा, तो वो तो पढ़ना ही पड़ेगा सर लीगल टर्म, उसके लिए तो कोई सोल्यूशन नहीं है। हाँ, कुछ एक्सप्लेनेटरी वीडियोस, ठीक है, आजकल तो एआई भी है, ओके, यू कैन टेक व्हाट यू कैन डू सिंपल थिंग। मेरे टाइम पे तो एआई जब था नहीं, जब मैं एग्जाम की प्रिपरेशन करता था, व्हाट यू कैन डू, आप एआई पे जाएंगे, एक पर्टिकुलर सेक्शन है एक्ट का, ओके, आपको उसके एग्जाम्पल चाहिए, यस काइंडली प्रोवाइड मी एन एग्जाम्पल ऑफ सेक्शन 3K ऑफ पेटेंट एक्ट, तो वो आपको शायद एग्जाम्पल दे देगा। यू कैन टॉक अबाउट नोवेल्टी, यार मुझे एक नोवेल्टी का एग्जाम्पल दो, व्हाट इज नोवेल्टी, ऐसे कर सकते हैं सर, क्योंकि आजकल तो काफी सारा कंटेंट अवेलेबल है, तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, वो तो है ही, बाकी फल तो। थैंक यू वेरी मच सर। यस हेलो हेलो यस मैम। हाँ सर, एक्चुअली जैसे एक सर्टिफिकेट, जब ग्रांट सर्टिफिकेट मिलता है, यस तो मैम। अभी रिसेंटली एक्चुअली हमारा एक ग्रांट हुआ, लेकिन उसमें क्या ना, खाली 2 नाम से, टोटल 6 नाम थे, 6 इन्वेंटर थे, तो 6 में से 2 इन्वेंटर का नाम नेक्स्ट पेज में चला गया। एनी सॉल्यूशन कैन यू सजेस्ट फॉर दैट? दो सो दैट, इन्वेंटर का नाम नेक्स्ट पेज में, बट मैम सर्टिफिकेट तो एक ही होगा ना मैम। नहीं सर्टिफिकेट, देखिए सर्टिफिकेट जना जैसे पहले मेरा था, उस समय भी वही 5-6 लोग थे, लेकिन एक ही पेज में, सिंगल पेज में आ गया था। अभी क्या ना, 2 पेज, सेकंड पेज में खाली नाम और पैटेंट नंबर और एप्लीकेशन डेट, ये तो डेट ऑफ एप्लीकेशन, ये तो फर्स्ट पेज में भी है, लेकिन सेकंड पेज में इसके अलावा थर्ड लाइन है, नेम ऑफ इन्वेंटर में 2 नाम एक्स्ट्रा है। तो इसका कुछ करेक्शन या कैसे कुछ कर सकते हैं क्या, ऐसे एक पेज में लाने के लिए? मैम ये मुझे समझ, ये क्या है, इसमें इन्वेंटर बहुत सारे थे मैम? इन्वेंटर टोटल 6 थे, हम्म लेकिन 4 नाम पहला पेज में आया और हम्म सेकंड पेज में 2 नाम शिफ्ट हो गया। ओके मैम, आप एक ये कर सकते हैं इसके लिए कि आईटी को एक मेल कर सकते हैं, बट आई थिंक हो सकता है कि पेज की कोई लिमिट हो नहीं कैरेक्टर्स की, सर, इसलिए मैंने हमारा पहले जैसे अभी रिसेंटली और दूसरे का मैंने देखा, उन लोगों का 8 इन्वेंटर्स है, 8 का नाम एक ही पेज में है, हम्म जबकि हमारा 2 नाम उधर चला गया। तो सर आप मैम आप ये कर सकते हैं कि आईटी सपोर्ट को आप मेल कर सकते हैं, ओके, आप आईपी इंडिया की वेबसाइट पे जाएंगे एक बार, ओके। और हाँ, और जो कंसर्न कंट्रोलर उनको भी मेल कर सकते हैं आप कि सर ऐसा हुआ हमारे सर्टिफिकेट में कि जो 2 नाम है वो नीचे आ गए हैं और 4 नाम जो है वो ऊपर वाले पेज पे चले गए हैं। जी जी वैसे जी। ये एक फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग दिस। हाँ, मैं भी एक्चुअली, मेरा भी थर्ड पैटर्न था, लेकिन पहले दोनों तक का तो दिक्कत नहीं था, इसमें पता नहीं कैसे सेकंड पेज में चला गया। तो मैम व्हाट यू कैन डू कि आप कंसर्न कंट्रोलर या जो आईटी टीम है उनको लिखिए मेल और उसमें बताइए कि ऐसा हो गया है, ओके क्योंकि जनरली मैंने ऐसा केस एनकाउंटर नहीं किया है, तो यू कैन टेक ए ओके। फॉलो अप विद द कंट्रोलर। कंट्रोलर जो बोले उनका एंड किस डिटेल मिलेगा? कंसर्न यस मैम। कंट्रोलर, कंसर्न मैम कंट्रोल। आप आपको ऐसा मिलेगा कि जो इंटीमेशन ऑफ ग्रांट है, जो आपकी एप्लीकेशन नंबर है, जी। वहाँ पे आप आईपी इंडिया वेबसाइट पे जाएंगे, ओके, और आईपी इंडिया वेबसाइट पे जाके जब पेटेंट सर्च में जाएंगे, वहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर सर्च करेंगे। ठीक है जब सर। सर्च करेंगे तो वहाँ एक आएगा ऊपर इंटीमेशन फॉर ग्रांट, ओके वहां पे आपको मैम नाम मिल जाएगा, शायद ईमेल आईडी भी मिलेगी आपको, ओके, ओके, या जिस उनका आईडी से आपको हियरिंग का मेल आया होगा वहां हाँ पे भी हाँ सर, हाँ हियरिंग का एफ मेल ई तो आर आया था। एफ ई आर में भी आपको मिल जाएगा। हाँ यस, हाँ हाँ, तो इन सब चीजों में आपको मैम उनको डिटेल मेल मिल कर जाएंगे सकते हैं कंट्रोलर तो के। अच्छा। ठीक यस, ठीक है, ईमेल आईडी ओके आपको मिल जाएगी। ओके ओके, थैंक यू जनरली ये सर। होता नहीं है, बट आई थिंक ये हुआ है, तो यू तो कैन मतलब राइट। मेरा तो, मैं भी मतलब एस्टोनिश हो गई कि मतलब ऐसे कैसे, जब 8 लोगों का देगी पेज में नाम रहता है, किसमें हमारा ऐसे हो हाँ, गया। जनरली ये होता नहीं है मैम, इवन आई हैव जी, सीन 4-5 नेम्स एज इन्वेंटर। यस या मैम। या या, ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। यस मैम। यस, एनी अदर क्वेरी इफ एनीवन हैव, बिकॉज आप प्रोजेक्यूशन को समझ सकते हैं लोगों के डाउट से ज्यादा बेहतर एज कम्पेयर टू आई एम स्पीकिंग। यस, or any other topic you want me to discuss other than patent in the field of IPR, I can also discuss and give a brief about it. सर और एक चीज था, जैसे रिन्यू करना होता है, जैसे अभी मैंने फाइल किया, फिर मेरे एफआर और हियरिंग सब हो गया, ग्रांट सर्टिफिकेट मिल गई, हम्म फिर उसको रिन्यू करना होता है, हम्म फिर एक पैटर्न का वैलिडिटी कितना कितना साल के लिए रहता है, और फीस वगैरह सब कैसे रहता है?
मैम ये फीस का तो मैंने आपको बता ही दिया है। फीस जी आईपी इंडिया आप हाँ, लिखेंगे उसी पे गूगल मिल पे, जाएगा। हाँ फीस हाँ आईपी इंडिया पेटेंट्स, तो वहाँ पे आपको रिन्यूअल फीस और ये सबकी डिटेल मिल जाएगी। जी जो पेटेंट का टर्म होता है मैम वो फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग, मान लीजिए आपने आज फाइल किया और जी आपको पेटेंट मिलता है 2026 में आपने फाइल किया आज, और 2028 में आपको पेटेंट मिल गया, तो प्रोटेक्शन तो आज से ही चालू है मैम। ओके, हाँ ग्रांट भले ही तब हुआ हो, प्रोटेक्शन आज से चालू है फ्रॉम द 20 ईयर्स। अब जी। कुछ लोग क्या करते हैं कि एडवांस में भी रिन्यूअल फी पे कर देते हैं, कुछ लोग और यस 20 ईयर ईयर्स बाय के ईयर, लिए पूरा। हाँ वैसे भी करते हैं। तो वो इट्स अप टू यू, उसकी डिटेल आप ओके देख सकते हैं फीस आईपी इंडिया पे। यस ओके ओके ओके, थैंक यू। हेलो सर। यस सर। एक मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई पैटर्न ड्राफ्टिंग करना चाहते हैं जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस या कुछ फाइलिंग के लिए, तो ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस करने का कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर या मेथोडोलॉजी या कोई फॉर्मेट अवेलेबल होगा? तो ड्राफ्टिंग के लिए तो यही है कि जैसे मैंने आपको बताया, एक प्रोफेसर थे जो मुझे मिले थे और उनका एक डेडिकेटेड रिसर्च वर्क था। ओके, तो उनके पास टाइम था तो दे यूज टू फाइल ऑन देमसेल्फ। जनरली पेटेंट आप खुद भी फाइल कर सकते हैं, ये उस टॉपिक के अंदर आएगा। यू कैन फाइल योर पेटेंट योरसेल्फ। तो उसमें क्या होगा सर कि व्हाट यू कैन डू, आप आईपी इंडिया पे गए, आपने अपने रिलेवेंट कीवर्ड्स सर्च किए, ओके, या फिर आपने गूगल पेटेंट्स पे गए, वहाँ पे रिलेवेंट कीवर्ड सर्च करेंगे। ये बहुत सिंपल सी अप्रोच बता रहा हूँ मैं, वहाँ पे आपको ना बहुत सारे पेटेंट्स मिल जाएंगे ऑलरेडी। ओके, तो वहाँ पे जाके यू कैन सी हाउ दे हैव रिटन द क्लेम्स, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट क्या है, ड्राइंग्स क्या है। ड्राइंग्स तो मैंने आपको बताया था, जितने भी डायग्राम्स हैं, मे बी फंक्शनल ब्लॉक्स हैं, या फिर आपका सर्किटरी है, या फिर फ्लो चार्ट है। ओके, तो ये सारी चीज़ आप ड्राइंग में बता दिया। या फिर कंपोनेंट है, मैकेनिकल इन्वेंशन है तो हो सकता है उसमें एंगल्स हों, ओके, डायमेंशंस हों, ओके, कोई पार्ट है उसका उसका ड्राइंग हो, तो ये ड्राइंग वाला पार्ट हो गया। एब्स्ट्रैक्ट इज काइंड ऑफ यू कैन से वेरी प्रिसाइज समरी ऑफ योर इन्वेंशन। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट हो गया। इसके बाद क्लेम में वो फीचर आप पुटअप करते हैं जो फीचर यू थिंक कि आप उनका दावा करना चाहते हैं। ओके, वी वांट टू क्लेम प्रोटेक्शन फॉर, स्पेसिफिकेशन तो बहुत बड़ी है, उसमें तो सारी वर्किंग लिखी है, बट क्लेम में आप उन फीचर्स को लिखते हैं जिनसे इन्वेंशन होता है। ओके, जो एसेंशियल इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स या वैसे होते हैं, आप उनको वहाँ पुटअप करते हैं। सो गूगल पेटेंट से आप देख सकते हैं, आईपी इंडिया से देख सकते हैं। दिस इज द वे हाउ यू कैन डू इट, और ड्राफ्टिंग। सर प्रायर आर्ट इट्स के लाइक लिए कोई फ्री टूल वो जैसे अवेलेबल है? उन मैम ने मुझे कहा था वहाँ पे, मैं जब गया था सेशन लेने, तो इट वाज द केस ऑफ आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर। और वहाँ मैम ने मुझे कहा था कि सर मेरे को पहले 2-3 फाइल करने में बहुत दिक्कत हुई, फिर अभी मेरे पास टाइम भी रहता है काफ़ी, तो मैं खुद से, पहले मुझे टाइम लगा बट यस ग्रेजुअली आई हैव स्टार्टेड फाइलिंग माई सेल्फ। ओके, जिनके पास टाइम नहीं है या जो समझ नहीं पाते हैं या और अदर डेडिकेटेड वर्क्स हैं, ओके, यू हैव अनदर ऑप्शन आल्सो टू गो थ्रू एजेंट। ओके सर। और प्रायर आर्ट के लिए गूगल आईपी इंडिया है और गूगल पैटर्न, उसके अलावा कोई दूसरी सर साइट है जिससे सर लॉट प्रायर ऑफ है, आर्ट? गूगल स्कॉलर यूज कर सकते हैं आप। ओके, अगर आप एकेडमिक्स में हैं तो प्रायर आर्ट सर्च आप उन पे भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अलग अलग सोसाइटी होती हैं, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स के बंदे हैं कोई, तो आई ट्रिपल ई का इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल जब मैं आईआईटी खड़गपुर में एमटेक ज्वाइन किया था तो वहाँ पे आई ट्रिपल ई का एक्सेस हमको मिलता था, तो मैं वहाँ पे भी रिसर्च पेपर पढ़ के देखता था कि अच्छा ये टॉपिक इस रिसर्च पेपर में अच्छे से दिया है तो यहाँ से पढ़ सकता हूँ। ओके, तो आप कई सारे तरीके हैं। आप किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे, किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट से प्रायर आर्ट सर्च, सर ऐसा है, हो सकता है कि प्रायर आर्ट सर्च आपको गूगल पेटेंट पे मिल जाए, आईपी इंडिया पे मिल जाए, किसी भी कहीं पे भी मिल सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है। यस, ओके, थैंक यू सर। इट्स अप टू यू हाउ बेटर यू आर सर्चिंग। कोई सर्च प्लेटफॉर्म भी आप ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यस, एनी अदर डाउट यू हैव? Hello participants, if you have a question, please drop it in the chat box or feel free to unmute and ask. Yes, I think chat box also have some question. uh, okay, it is not a question, just a mention. Okay, yes, any kind of question related to patent, because patent के
ऊपर you can ask me anything which I can help you out in the prosecution, filing, prior art, what is novelty, inventive step. We have discussed it, each and everything, but still you have any doubt. We also even discussed about patent in exam. What is design patent? Design is all about orientation. This is the orientation, the outer appearance. But the technology for making this jerk, this will come under patents. Okay. For example, ये जो चश्मा है मैंने पहना है, this is all appearance thing. But इस लेंस को बनाने की टेक्नोलॉजी will come under patents. The branding will come under trademark. Okay. It's like that. तो ये कुछ लोग बोल देते हैं कि पेटेंट का कॉपीराइट हो जाता है और कॉपीराइट का पेटेंट हो जाता है। ऐसा नहीं होता है। रिसर्च वर्क है, आप कॉपीराइट ले सकते हैं, नो इशू। रिसर्च वर्क को आप रियलाइज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सम डिवाइस, उससे कुछ वाकई में कॉन्क्रीट निकल के आ रहा है, ओके, सम मेथड है, सम डिवाइस है, ओके, उसको प्रॉपर तरीके से पेटेंट फॉर्म में फाइल करेंगे, ओके, यू कैन फाइल फॉर अ पेटेंट। Copyright is mainly about content, okay, but research, when we talk about patent, it is like technology. वो बात अलग है जब आप उसको स्पेसिफिकेशन के फॉर्म में लिखते हैं, इट लुक्स लाइक ए कंटेंट, बट वहां आप सब चीजें बताते हैं कंप्लीट आंसर। जब भी पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करते हैं हमेशा डिटेल में लिखिए। पेटेंट ऑफिस से आपको कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हिंदी में एक शब्द है, अगर इसको हम, मैं आपको बताता हूँ, इसको बोलते हैं कि फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर, पूरा खुलासा, यस, आई फॉरगॉट दैट वर्ड, खुलासा पूरा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इन्वेंशन का बैकग्राउंड क्या है, अभी तक क्या हो चुका है, आगे क्या मैं कर रहा हूं, मेरा क्या एडवांटेजेस है, मेरे क्या रिजल्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक फेशियल रिकॉग्निशन एल्गोरिथम पे वर्क किया है और हो सकता है उसमें आपके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, तो उसमें बताना होगा टेस्ट डेटा, ट्रेनिंग डेटा, द फाइनल रिजल्ट्स, एनालिसिस। क्योंकि कोई भी चीज कॉन्क्रीट कब दिखेगी पेपर पे, जब होगी। अब आपने लिख दिया कि मैं ये करता हूँ, आई डू सर्टेन प्रोसेसिंग, देन आई डू सम एक्सट्रैक्शन, देन आई एम हैविंग दिस आउटपुट। ये नहीं होता पेटेंट एप्लीकेशन। पेटेंट एप्लीकेशन होता है मैं प्रोसेसिंग करता हूँ, उसकी विधि बताऊंगा, मैं एक्सट्रैक्शन करता हूँ, उसकी विधि बताऊंगा, मैं एआई का उपयोग करता हूँ, मैं टेस्ट डेटा, ट्रेनिंग डेटा बताऊंगा, मैं एल्गोरिथम को बताऊंगा, मैं कौन सी एल्गोरिथम को यूज कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि नाम लिख दिया बस हो गया, नहीं, आपको उसको अपने इन्वेंशन के हिसाब से समझाना होगा, व्हाट इज माय इनपुट एंड व्हाट इज माय आउटपुट। तो ये चीजें हमेशा दिमाग में रखिए कि चीजें अच्छे से बताएंगे पेटेंट ऑफिस को, ओके। पेटेंट ऑफिस को बताने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हाँ, अपने इन्वेंशन को कभी भी ओपनली शेयर मत करिए। जैसे अभी टीसेंट एनर्जी के हमारे साथ एक वक्ता जुड़े थे, उन्होंने कितना अच्छे से बताया कि सर हम किसी कंट्रोलर उस पर कर रहे हैं, फील्ड रिलेटेड है हमारा, बस इतना, क्योंकि वो पब्लिक में है अभी, करेक्ट। तो पब्लिकली अपने आइडिया को डिस्क्लोज मत करिए इन कि आपने गूगल पे डाल दिया, फेसबुक पे डाल दिया, नहीं, पहले पेटेंट फाइल कर दीजिए, क्योंकि स्टार्ट हो गया प्रोटेक्शन फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग। इसके बाद आपको जो भी करना है, जहां पे भी पेटेंट करना है, करते रहिए, डज नॉट मैटर, क्योंकि प्रोटेक्शन तो आपका चालू हो गया फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग। दिस इज द लास्ट एडवाइस फ्रॉम माय साइड। यस, एनी अदर क्वेश्चन वी कैन हैव। हेलो सर। हेलो सर, मैंने पेटेंट फाइल किया हुआ है, कोई मैकेनिकल पार्ट्स होता है या कोई प्रोडक्ट होता है उसमें, तो कोई मेरा वही प्रोडक्ट है और दूसरे ने जो बना वो स्मॉल पार्ट्स ऑफ यूनिक किया, थोड़ा सा ही नया किया, तो उसमें उसे मिल सकता है वो पेटेंट? प्रोसेस हमारी हो, दिखा मतलब डिजाइन भी हमारी ही हो, तो थोड़ा सा कुछ नया यूनिक ला दिया हो तो उसमें। सर आप किसकी बात कर रहे हैं, पेटेंट की या डिजाइन की? पहले क्लियर कर दिया। पेटेंट की सर। पेटेंट, हाँ, तो मेरा कोई प्रोडक्ट हो, एग्जाम्पल के कोई चल रहा हो, कोई हेल्पिंग होम के लिए हो, उसमें साउंड नहीं है पर कोई दूसरा है तो उसमें साउंड डाल सकता है, तो उसने वो साउंड डाला तो उसे सर उसमें क्या होगा, पेटेंट ऑफिस हमेशा ये दिखेगा, मान लीजिए किसी थर्ड पर्सन ने पेटेंट फाइल किया और हमें सर्च में आपका प्रायर आर्ट मिला, ठीक है, आपका इन्वेंशन मुझे मिला, मैंने उसको D1 बना के भेजा एप्लीकेंट को, ओके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कोई सा भी नाम लेते हैं, सारंग जी है, उन्होंने पेटेंट फाइल किया है, ओके, और राजन राठौड़ जी का डॉक्यूमेंट है, वो हमने D1 बना के सारंग जी को FER में भेजा है। सर उस केस में क्या होगा कि पेटेंट ऑफिस ये दिखेगा कि जो एक्स्ट्रा फीचर है वो
पर्सन स्किन द आर्ट आपके डॉक्यूमेंट या किसी और डॉक्यूमेंट को मिला के उस फीचर पे अराइव कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कटिंग माय पॉइंट। मतलब दूसरे डॉक्यूमेंट या फिर जो सामान्य ज्ञान में अवेलेबल है टेक्नोलॉजीज आपके इन्वेंशन से पहले, ओके, सारंग जी के इन्वेंशन के पहले जो भी इन्वेंशन है उनमें आपका भी इन्वेंशन और दूसरे इन्वेंशन को मिला के क्या वो इन्वेंशन ऑब्वियस है या नहीं है? समझ रहे हैं आपकी नहीं समझ रहे हैं? नहीं, अभी आपका तो लग इन्वेंशन प्रायर आर्ट बन गया है, लेकिन मेरे पास अगर एक और प्रायर आर्ट है और उससे मैं सारंग जी के इन्वेंशन तक पहुंच पा रहा हूं, तो मैं ये बोलूंगा कि सारंग जी को पेटेंट नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि राजन जी का जो इन्वेंशन है D1 और एक नया मुझे डॉक्यूमेंट मिला D2, उन दोनों को मिला के मैं सारंग जी के इन्वेंशन तक पहुंच पा रहा हूं। आई कैन डू इट। गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे समझना है आपको कि कोई भी उस फील्ड का बंदा आपके डॉक्यूमेंट और नए डॉक्यूमेंट को मिलाकर, जो कि फाइल एप्लीकेशन के फाइलिंग डेट के पहले के हैं, उनको मिला के वहां पहुंच पाता है कि नहीं पहुंच पाता है। अगर उस रिजल्ट पे या उस एफिशिएंसी पे या उस टेक्निकल एडवांसमेंट पे पहुंच पा रहा है तो उनको पेटेंट नहीं मिलेगा। थैंक यू। और सर एक और चीज आप कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि भाई मेरा ही इन्वेंशन उठा के किसी ने कट कॉपी पेस्ट कर दिया है, हाँ। करेक्ट, तो आप क्या कर सकते हैं, और आपको नॉलेज में भी है, तो आप क्या करिए, आप प्री ग्रांट अपोजिशन फाइल कर सकते हैं ग्रांट होने के पहले, और ग्रांट होने के 1 साल के भीतर आप पोस्ट ग्रांट अपोजिशन भी फाइल कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट सर? थोड़ा सा ही चेंजेस किया हो उसने, बस थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ज्यादा नहीं, तो कर सकते हैं। तो हाँ, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू। वो थोड़ा डिफरेंस कितना है, मैं और आप, मैं तो नहीं बता सकता आपको आपके इन्वेंशन को समझे बिना। ओके, सो वो आप ही जज करेंगे कि क्या वाकई मैंने कट कॉपी पेस्ट ही कर दिया मेरे इन्वेंशन का। अगर आपने उसको आपको लग रहा है किया है, तो आप एक प्री ग्रांट अपोजिशन फाइल करेंगे। ओके, और अगर ग्रांट हो गया है वो दूसरा पेटेंट भी किसी और ने जो फाइल किया है, तो आप उस पर पोस्ट ग्रांट अपोजिशन विद इन 1 ईयर फाइल करेंगे। ठीक है। एक और क्वेरी यहाँ पर आई है हमारे पास, इफ अ रिसर्च पेपर इज जनरल, हाँ अगर मैम यस वो भी कर सकते हैं आप, बट वो 1 साल के भीतर करना पड़ेगा आपको। यस सर, मिस्टर अशोक जादवर, यस जादवर, यस, you can file your patent application if it is published in a recognized journal. For example, जैसे मैं IEEE नाम ले रहा हूँ बार बार कि आई एम फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड। अगर आप किसी और रिसर्च सोसाइटी में अपना पेपर पब्लिश करते हैं, ओके, रिकॉग्नाइज्ड सोसाइटी, ओके, तो यू कैन फाइल अ पेटेंट विद इन द 12 मंथ्स ऑफ सच पब्लिकेशन। मान लीजिए आज ही मेरा रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है और अब मुझे समझ में आया कि नहीं, ये सिर्फ ना एकेडमिक पर्पस के लिए नहीं, ये ना कॉमर्शियल एक्सप्लॉइट भी हो सकता है। क्यों ना मैं ये अपना इन्वेंशन किसी टेलीकॉम कंपनी को दे देता हूँ, क्योंकि ये ना सेलुलर नेटवर्क में रेवोल्यूशन ला देगा। मैं क्या करूंगा यार, पेटेंट फाइल करते हैं सबसे पहले, पेटेंट फाइल करूंगा आज ही, आज नहीं कर पाया, भूल गया, मुझे 1 साल बाद लगा, अरे यार 1 साल, तो 1 साल के भीतर करना है, 1 साल बाद कुछ नहीं हो सकता, बट विद इन 1 ईयर आप पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। I think yes, before 12 months, within 12 months, yes, within 12 months, मैम, सर, yes। एक रिकॉग्नाइज सोसाइटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं आपने कहीं पे भी पब्लिश कर दिया है। ओके, उसके लिए आप डेफिनेटली पेटेंट एक्ट पढ़ सकते हैं। ओके, व्हाट कंसिडर्ड अ रिकॉग्नाइज्ड जर्नल, यस। और अच्छा क्वेश्चन पूछा है मैम ने, जनरली मैं इसको कवर करता हूँ। If I want to file name trademark but same name found trademark but in different class, can I file the? Yes sir, you can always file if it is in different class, but again the examination authority will decide whether to, because sir कुछ चीजें ट्रेडमार्क की जब हम बात करते हैं, दो आई एम एन एक्सपर्ट फ्रॉम पेटेंट ओनली, ओके, इवन आई डोंट कंसिडर माई एक्सपर्ट, ओके, आई एम लर्निंग, ओके, सो if you want to file a trademark application, yes, people file same name in different class, but again it depends on examination, okay, they may get something that may be objectable, okay, for example it may happen that there are some well known names, okay, कोई बहुत ही पब्लिक का नेम है, पब्लिकली नोन नेम है, और आप उसके लिए ट्रेडमार्क चाह रहे हैं किसी दूसरी क्लास में,
वो ऑब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि वेल नोन ट्रेडमार्क्स हैं, उससे ब्रांड का आप डिसरेपुटेशन भी हो सकता है ब्रांड का, और लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं. तो इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनेशन. ओके, बट जनरली why people what people do, they will definitely choose a different name for their brand if that brand has that you can say that thing that creates trust among the customers. If you think yes, you are the person, your brand is has that kind of, your brand can have that, your product has that value, why you will choose a name which is same as that of other company? You will definitely take a different name. But again, in this cases where people sometimes takes even I am from patent, but I read some cases from different website. So what I see that people try to file different names in different class, but sometimes it happens that they file some well recognized names for the trademark protection. वहाँ वो ऑब्जेक्टेबल हो सकता है, क्योंकि उधर ये हो जाता है कि ऑलरेडी एक ब्रांड रेपुटेशन बहुत ज्यादा एस्टेब्लिश हो चुकी है, एंड पीपल मे गेट डिसीव्ड. Again, it is left to examination. Depends on the examination process. Yeah. I think I could answer you. Yes. One more question in prior art search. We can use any tool which can help to do prior search in easy way. हाँ, प्रायर आर्ट सर्च सर, पेटेंट ऑफिस को ना प्रायर आर्ट सर्च से मतलब ही नहीं है. वो तो मैं आपको बता रहा हूँ. प्रायर आर्ट सर्च करनी चाहिए. क्यों करनी चाहिए? ये पता करने के लिए कि मैं जिस फील्ड में काम कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कोई और कर चुका है. अगर कोई कर चुका है तो फिर मैं जो कर रहा हूँ उसमें कोई एडवांसमेंट है भी या नहीं है. ऐसा ना हो कि बहुत ऑब्वियस सी चीज हो. फॉर एग्जाम्पल, ये मोबाइल डिवाइस है, इस पे अगर एक मैं लाइट इंटीग्रेट कर दूं, ओके, एक लाइट इंटीग्रेट कर देता हूँ, और उससे कुछ सर्किटरी में ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है, तो एक ऑब्वियस चीज कहलाएगी वो, unless until it is having certain advancement, certain technical advancement. Okay, so always do a prior art search. कहीं से भी करिए, it does not matter. सर एक और क्वेश्चन है. Can I? जी सर. जी. सर अगर मान लीजिए मैंने कोई पेटेंट फाइल किया प्रोविजनल, ओके, एंड उसको मैं कंप्लीट पेटेंट अभी तक फाइल नहीं किया है, ठीक है, एंड अनदर पार्टी है उसने भी फाइल किया हुआ है प्रोविजनल, ओके, एंड देन इस पीरियड में एक्चुअली प्रायर आर्ट में पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि प्रायर आर्ट तो उसी का होगा जो पब्लिश्ड हुआ है, जी. राइट. अगर मान लीजिए उसके बाद हम दोनों में से कोई भी अगर मान लीजिए पेटेंट कंप्लीट पेटेंट के लिए फाइल करता है एंड देन वी गॉट इट ग्रांटेड, ठीक है, लेकिन सेकंड वाला जो है वो उसके बाद आता है एंड बोलता है नाउ आई वांट टू फाइल इट, इट इज नॉट 365 डेज ओवर, बट मैंने तो इससे पहले फाइल किया हुआ था प्रोविजनल. इन दैट केस इसका सॉल्यूशन कैसे निकलता है सर, क्योंकि ये एम्बिग्युइटी काफी क्रिएट होता है, राइट? हाँ, एम्बिग्युइटी रहेगा सर. इवन फॉर एग्जांपल, मुझे वो डॉक्यूमेंट दिख सकता है कि दोनों डॉक्यूमेंट मुझे दिख जाएंगे, बट अगर मेरी प्रायर आर्ट सर्च में वो मिस हो जाते हैं और उनमें से एक पेटेंट ग्रांट हो जाता है. आप किस पेटेंट की बात कर रहे हैं? पहले फाइल किए पेटेंट की या बाद में फाइल किए पेटेंट एप्लीकेशन? सर लेट्स टेक विद नंबर. 1 जनवरी में किसी ने फाइल किया प्रोविजनल, 1 Okay. फरवरी ने फाइल किया, ओके. ठीक है. जी. अब जिसने जनवरी में फाइल किया उसका बेसिकली पेटेंट कंप्लीट पेटेंट वो फाइल कर रहा है दिसंबर में, ठीक है, लेकिन जो फरवरी में फाइल किया उसने मार्च में ही कर दिया, 1 महीने के अंदर. तो मार्च में जिसका आया उसका प्रोबेबली पहले हो जाएगा ये सब चीज. जब दिसंबर में वो Okay. फाइल कर रहा है तो वो बोल रहा है मैंने प्रोविजनल पेटेंट तो जनवरी में इससे पहले फाइल किया है, और इसको कैसे ग्रांट हो गया? हाँ, तो सर अगर इस केस में ग्रांट होता है, ओके, एंड इफ यू गेट इट रिकॉग्नाइज्ड बिफोर द ग्रांट, यू कैन फाइल अ प्री ग्रांट अपोजिशन, एंड इफ यू थिंक दैट इट इज ग्रांटेड, ओके, अगर आपको दिख रहा है आईपी इंडिया की वेबसाइट पर उस एप्लीकेशन का नंबर, आप चेक कर पा रहे हैं कि वो ग्रांटेड है, तो आप एक पोस्ट ग्रांट अपोजिशन फाइल कर सकते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट. ओके, तो ये और भी एक इसके बाद तो मतलब फिर- ये भी एक प्रोसेस है. यस, ये प्रोसेस है. प्री ग्रांट अपोजिशन कर सकते हैं और पोस्ट ग्रांट भी कर सकते हैं. इसके Okay. बाद तो फिर नेक्स्ट जो है, यू विल फाइल अ केस इन हाई कोर्ट. यस. मतलब ये एक पॉसिबिलिटी है, राइट? ऐसा हो सकता है. यस सर, हो ही सकता है, बिल्कुल हो सकता है. फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आई एंड यू, अर्पित जैन एंड मान लीजिए टेक सम नेम फ्रॉम हियर, जस्ट say Mr. Mayur Patel and Arpit Jain, we have filed a patent application. We were working on some research work in the same university, maybe some XYZ university. और हुआ क्या कि जब हम पास आउट हुए तो मैंने पेटेंट फाइल कर दिया और उनको बताया ही नहीं, जबकि हम दोनों साथ में वर्क कर रहे थे.
ओके, लेकिन एक चीज हुई थी जो हम दोनों में कॉमन थी, ये कि एक रिसर्च पेपर में हमारा पब्लिकेशन हुआ था हम्म और वो एक रिकॉग्नाइज जर्नल था। हम्म ओके, ठीक है। और इसके बाद ये होता है कि उनने भी फाइल कर दिया बाद में। ओके, उनने फाइल कर दिया एक अपोजिशन कि हम्म सर ये जो चीज है ऑलरेडी रिसर्च वर्क में हम पब्लिश कर चुके थे, हम्म ये इस डेट को हो गई है, तो वो प्री ग्रांट अपोजिशन फाइल क्यों नहीं कर सकते? मयूर पाटिल कर सकते हैं। करेक्ट ओके ना, क्योंकि उनके राइट्स का यहाँ पर वायलेशन हो रहा है। जब ये चीज जॉइंट में थी और उसका प्रूफ दिख भी रहा है, कहाँ हम्म दिख रहा है? उस रिसर्च पेपर में दिख रहा है कि वी वर बोथ वर द इन्वेंटर्स, तो आप प्री ग्रांट हम्म अपोजिशन फाइल कर सकते हैं। ऐसा हम्म नहीं है कि प्री ग्रांट के लिए आपको वही लेके आना पड़ेगा पेटेंट का डॉक्यूमेंट, नहीं, कोई सा भी हम्म डॉक्यूमेंट हो सकता है, रिसर्च वर्क में हो सकता है, एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल के फॉर्म में पब्लिश किया हो पूरा इन्वेंशन, या किसी रिसर्च मैगजीन में किया हो, वो भी प्री हम्म ग्रांट बन सकता है। यस, गॉट इट गॉट एनी डॉक्यूमेंट विच इज रिलेवेंट, उससे प्री ग्रांट अपोजिशन फाइल कर सकते हैं जी। ठीक है सर, थैंक यू। और कोई क्वेरी है तो बताइए। यस, अदरवाइज वी कैन एंड। यस, यस मैम। Yes, sir. Now I would like to request Mr. Parth Sejpal, IPR Chair Professor, to give vote of thanks. Yes, sir. Hello, everyone. Myself, Parth Sejpal, IPR Chair Professor, DPIT IPR Chair of Sarvas University. I am very heartful thanks to you, sir. Firstly, your presence here is very honored. We are grateful to you for making your time from your packed schedule, right? Because we know that patent office doesn't allow you a few moments to be free. Today's session was truly a learning experience for all of us. Sir, you took through the entire landscape of patent prosecution, right from understanding the different types of IP, that is distinguishing between utility patent and design patent. Also, the timeline of patent process of patent prosecution, pre-grant, post-grant proposition, the criteria of patentability, and method of commercialization. That bring a very insightful session. What stood out was the simplicity and the clarity with which each of the concepts is delivered, making it very accessible and meaningful for the participants at every level. We leave today's session not just more informed, but genuinely inspired, sir. So, on behalf of DPIT IPR Chair and SUSEC Sauras University, I extend our deepest thanks to Sir for this enriching session, to all our participants for their wonderful engagement, and to our team for organizing this so seamlessly. We sincerely hope, sir, that we will have the privilege of learning from you again in the next sessions. Thank you, sir. Thank you. And with this, we are ending our session. Please, everyone, thank you. Thank you, everyone. Thank you, sir, for this wonderful session. Thank you so much. Bye bye.